Yes, good morning everyone. चलिए तो शुरू करते हैं फिर. The first thing that we have about is Tapi gas pipeline. ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन. देखिए इसमें थोड़ा सा यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इंडियाज फॉरेन अफेयर्स एंड इट्स रिलेशंस. So Modi ji has launched a scheme known as Neighborhood First. The scheme is, or the policy objective is Neighborhood First. Under this, the government thought that I will give first impetus to the neighborhood. ठीक है, थोड़ा हम अभी आगे देख लेंगे. तो one of the very important project is TAPI, and why it's very important, because if you have any idea about India's energy needs, तो आपको पता होगा 85% of India's energy needs are made by imports. इंडिया की जो टोटल एनर्जी नीड है उसका लगभग 85% we meet by imports. So India is a critically import dependent country when it comes to energy, and that's why economics में you will do about India's energy sector. उसमें you will do India is investing in renewable energy, non traditional sources. Renewable के लिए we can become self sufficient. Second program is nuclear energy program, which is very 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 critical, because I hope आपने नाम सुना होगा होमी भाभा का. He's the father of India's nuclear energy program as well as India's nuclear energy initiative. He gave 3-stage program for India's nuclear energy. First stage में you will have uranium plus में heavy water reactors, sorry D2O बोलते हैं इसे हम. Second stage में you will have plutonium plus में fast breeder reactors, and last में you will have thorium plus में fast breeder reactors. हमें इस stage पे पहुंचना है. In the 3-stage program of uranium, plutonium and thorium, we have to reach to stage 3. Why? Because India has the world largest deposit of thorium. India has the world largest deposit of thorium, and if we can reach to the third stage, we will become energy self sufficient. इसका advantage. I hope सबको नुपुर शर्मा का केस याद होगा. She was a BJP spokesperson. She said something about Muhammad. अब वो सही था गलत था उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं. We are debating the implications. और पॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स में डजंट मैटर हु स्पीक्स द ट्रुथ, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू बिलीव. So she said something and it spread to the Muslim world and they were very angry. Ultimately the BJP has to take action as a government. देखिए वो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट थी, पर एक्शन किसे लेना पड़ा? गवर्नमेंट को. उसको एक्सपेल कर दिया बीजेपी से एंड देन एफआईआर वर इनिशिएटेड. क्यों? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट, एनर्जी इंपोर्ट्स. अगर वो 2 रुपए भी बढ़ा देंगे तो देयर विल बी अ स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑन इंडिया, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन टुक प्लेस थ्रू रोडवेज. बात समझ में आई? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टुक प्लेस थ्रू roadways, and increased crude oil means increased commodity prices, और इंडिया already is under severe inflation. अब तो बैलेंस हो गया है, but at that point of time we had a severe inflation. तो गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई. देखिए इसको आप कंपेयर कीजिए इजराइल से, इजराइल या फ्रांस से. फ्रांस में देयर वाज अ कार्टून पब्लिश्ड बाय चार्ली हेब्डो. उस पर बड़ा बवाल हुआ एंड फ्रेंच गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टेड और काइंड ऑफ पेस्टेड दैट टैटू photo on the building, government building. It was a defiance of what? Islamic countries. They said आपको बुरा लगता है तो लगता रहे. We are a country of freedom of speech. और हम अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते, तुम्हें क्या बख्शेंगे? If you see the series or other things made by USA, that's a very high standard. इंडिया में मना तो बवाल हो जाए. If you have seen the House of Cards, House of Cards is an American series. उसमें it is a person who tries to become the American president and he is very manipulative person. He goes to a church, he spit on the Jesus and says, "I don't believe on you." That Jesus, whatever it is, it falls and break down. इस तरह की liberty है अमेरिका में. They value liberty because they have fought for it. देखिए French Revolution, Puritan Revolution in America, Britain, they have spent blood to gain that liberty. So they respect that liberty very much. अब ये चीज हम नहीं कर सकते. द रीजन बीइंग, अगर हमने ऐसा करा होता तो इस्लामिक कंट्री वुड हैव गॉट एंग्री एंड दे वुड हैव इम्पोज्ड हायर टैरिफ ऑन आवर क्रूड ऑयल और हमारी प्रॉब्लम हो जाती. फ्रांस की बात अलग है. यू गॉट द पॉइंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, खासकर एनर्जी में.
and that's why we have a program called Tapi gas. सबको समझ में आया why we have this program? Because we want to become energy self-sufficient. A majority of our trade goes from ships. We bring oil from Middle East here and there, and then we refine in India and supply. That's how it works. But if we have a direct pipeline from Tajikistan, then going from Afghanistan, then Pakistan, and then India, and India will get a cheaper supply of crude oil. बात समझ में है सबको? That's why it is important. But there is a problem also. अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें दो ट्रबलिंग कंट्री बीच में आ जाते हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. तो इसमें I told you Modi government had a policy of, what was the policy? Neighborhood first. पर उसमें neighborhood first में थोड़ा पाकिस्तान अटक जाता है, because Pakistan and India has a frosty relations. So if I ask you, what do you think is the most important issue between India and Pakistan, जिसे हम solve कर दें तो relation अच्छे हो जाएंगे? Terrorism, कश्मीर, और कोई? कुछ नहीं. Whenever you will do IR, देखिए I always say current affairs जो होता है ना, it's a superimposed subject. It is not a subject altogether. ये जो भी आप economy, polity, IR पढ़ते हैं, उसके ऊपर ये updation होता है. So the ground is in your classroom program. The current affairs is just an updation program basically. It's not a different subject. Do not treat it like a subject. बात समझ में? So the thing is, आप जब IR करेंगे तो उसमें India Pakistan you will do. तो उसमें you will do a theory of Stephen P. Cohen. Stephen P. Cohen wrote a book and he named that book Shooting for a Century. And he gave a concept called paired minority conflict. देखिए एक्स्ट्रा ज्ञान है, एक्स्ट्रा बकैती की तरह, तो इसे लिख लिया करिए आसपास. इट इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूज पर से. आई एम गिविंग यू द कंटेंट व्हिच इज इन योर क्लासरूम प्रोग्राम्स, जस्ट टू हैव यू टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर्ड माइनॉरिटी conflict. Basically he said even if India gives Jammu Kashmir to Pakistan, देखिए पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन देखें, पाकिस्तान के हिसाब से जम्मू कश्मीर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे हिसाब से टेररिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वर्ल्ड के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. सो ही सेड इवन इफ इंडिया गिव्स जम्मू कश्मीर टू पाकिस्तान और पाकिस्तान गिव्स अप टेररिज्म और बोथ कंट्री गिव्स अप न्यूक्लियर वेपन, देखिए तीनों चीजें चली गई, टेररिज्म चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया, एंड न्यूक्लियर वेपन चला गया. Even after that, they will not have friendly relations. Why? Because he said India and Pakistan, just like Shia and Sunni in Middle East, Israel and Arab in Middle East, we all are in a paired minority conflict. What is this paired minority conflict? There are minorities in each country. There are minorities in each country. This is not religious minority, intellectual minority. Intellectual minority, जैसे पाकिस्तान में the army of Pakistan. Pakistan, why it's a poor country, why it does not have democracy? Because of Pakistani army along with USA is the reason. So मान लेते हैं they are 100 rupees with Pakistan government. पाकिस्तानी आर्मी कहती है give me 60 rupees. अब भाई कॉमन सेंस क्या कहता है? People will say भाई क्यों 60 rupees? We are dying out of hunger. आपको 60 रुपए चाहिए 100 में से. फिर वो क्या कहते हैं? Look India. They say we have a scarecrow. पाकिस्तानी आर्मी क्या कहती है? We have to fight India, and you care more about yourself than nationalism. नेशन का क्या होगा? थोड़ा भूखा रह लो देश के लिए. Got the point? And people say हाँ भाई genuine argument लग रहा है. Let it be. This is the reason. Pakistani army will never like to have good relations with India, because good relations means the people of Pakistan will say अब हमारे अच्छे रिलेशन है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा. Give that money to us. देखिए पूरे पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉस्परस है, पाकिस्तानी आर्मी, बाकी सब गरीब है. गॉट द रीजन? सेम इंडिया में है, हम नाम नहीं लेंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी चिल पीपल. ठीक है? तो अगले दिन दिल्ली पुलिस घर पे आएगी, आओ बहुत पढ़ाते हो तुम बच्चों को, चलो. ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर पीपल who would not like to have good relation. वरना फिर इलेक्शंस के टाइम पे किसको बॉम्ब करोगे? इलेक्शन के टाइम पे कौन आपका फूडर बनेगा? You got the, और मीडिया के लिए फिर कौन काम आएगा? मसाला कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में गरीबी होती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में पीपल आर डाइंग आउट ऑफ हंगर. ऑल द रिपोर्ट्स हाईलाइट्स दैट इंडिया इज इन अ वेरी बैड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. आप कोई भी इंडिकेटर उठा लीजिए, चाहे हंगर इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, ऑल इंडेक्स में वी आर एट द बॉटम, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड प्रेस फ्रीडम. हम तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं. बट फिर
मीडिया को बात करनी पड़ जाएगी ना आपके खाने के लिए, इट हैज टू टॉक, हाँ भाई इंडिया में हंगर है, क्योंकि पाकिस्तान तो दोस्त बन गया. सो दे विल नेवर लाइक टू हैव एन दे विल नेवर लाइक टू हैव गुड रिलेशंस, ताकि वो हर वक्त देखिए पाकिस्तान भूखा है. You will be saying I am hungry, they will be say Pakistanis are also hungry. तो आप क्यों चिल्ला रहे हो इतना? Look at them, they are beggar. यार हमें क्या मतलब, हमारे जाने के लिए पाकिस्तान मैप से मिट जाए. You got the point. Why should we care? And that is a problem with nationalism. It's a good idea, it's a good principle, but it is the most abused concept in the entire political science. सबको समझ में आ रहा है? So there is intentionally India Pakistan will never have good relation because there is a paired minority conflict. Same conflict applies to Israel, Arab countries and Shia Sunni in Middle East. सबको समझ में आया? So अब ये पाइपलाइन पूरी कैसे होगी जब पाकिस्तान से रिलेशंस ही अच्छे नहीं है हमारे पास. ठीक है, उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, कौन? अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में वी हैव अ तालिबान और मोदी गवर्नमेंट हैज अ पॉलिसी, टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर. तो करंट पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट की वो क्या है? टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन ये, हु इज टेररिस्ट? कौन है आतंकवादी? सॉरी ये कौन है? देखिए, टेररिज्म इज नॉट अ डिफाइंड प्रिंसिपल. ऑलवेज समबडीज टेररिस्ट इज समबडीज पैट्रियट. ये हमेशा होता है, डिपेंड करता है किस साइड पे आप खड़े. अ पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर योर राइट्स इज अ पैट्रियट. जैसे भगत सिंह का एग्जांपल बनता है. He threw a bomb in the Central Legislative Assembly, जिसे आप आज की पार्लियामेंट के बराबर मान सकते हैं. He threw a bomb, he did not kill anyone, but he was trying to raise a point to the deaf British government. तो ब्रिटिशर्स के मुताबिक वो क्या बन गया? टेररिस्ट. हमारे मुताबिक क्या बन गया? पैट्रियट. अब सेम गोज विद अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में there is a thing called तालिबान. Remember, you cannot come to power without people support. और अगर पावर में आप आ भी गए, you cannot sustain in power without people support, whether you like it or not. तो हमारी नजर में तालिबान कुड बी अ टेररिस्ट बिकॉज वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका. अमेरिका जिसे जो बोलता है मान लेते हैं. हम क्या, पूरी दुनिया मान लेती है. अमेरिका हैज दैट मच साइकिक कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. इट मेक्स थियरी आईआर, पूरा आईआर इज नथिंग बट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. सारी थियरी, सारे स्कॉलर्स आर ऑल अमेरिकन, ईदर डायरेक्टली अमेरिकन स्कॉलर और स्टडीड इन अमेरिका और अंडर अमेरिकन वैल्यूज. प्रॉब्लम समझ में आई? दो प्रॉब्लम है. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? Because we want to become energy sufficient. Problem क्या है? We are with Pakistan and we are in a paired minority conflict. In Afghanistan, you have a Taliban, and Taliban and India does not have very hunky-dory relations. The reason being, for a long time we considered Taliban as a terrorist organization, which it is. If you remember the hijack of IC-814, Indian Airlines, IC-814 was hijacked. And it was taken to Kandahar, Afghanistan, जिसके बाद हमें महसूद असर को छोड़ना पड़ा था, which became responsible for Mumbai terror attack as well as US terror attack, the Twin Tower attack. दोनों में महसूद असर का हाथ था. You got the point? Clarity. तो हमारे लिए तालिबान could be a terrorist organization, but for the people of Afghanistan, it's a patriotic organization. अब now they are in power. जिनको हमने सालों से आतंकवादी बोला, अब उन्हीं के साथ हमें बैठना पड़ेगा. And हमें बैठना चाहिए भी. Got the point? We should not care about the people's orientation. We should care about national interest. और ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको क्लियर है? What is the project? What are the issues? चलो, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से फिर पढ़ लेते क्या क्या लिखा है इसमें. It's a recently it was in the news because Pakistan and Turkmenistan signed a joint implementation plan to carry out the feasibility study to explore the options to speed up the work of Tapi pipeline. Tapi pipeline में few point you need to remember. The Tapi pipeline is a natural gas pipeline which connects where? ये जो भी इसे आप पढ़ पाए, मैं नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, whatever it is written, ठीक है, ये जो भी गैस फील्ड है, it is in Afghanistan, sorry, Turkmenistan. This gas field will be linked from Afghanistan to Pakistan to India में कहाँ पे? फजल का इंडिया. क्लियर? याद रखिएगा, this pipeline goes from this gas field to Fizilka, India. The purpose is to bring natural gas through a supply of pipes. फायदा ये होगा, we do not have to depend on Middle East, particularly Qatar. India 80 to 90% अपनी नेचुरल गैस कहाँ से इंपोर्ट करता है? कतर से. And that Islamic country is a problem because we cannot have free, independent foreign policy to Middle East. आप पूरा मिडल ईस्ट जब IR में करेंगे
उसमें एक ही पॉइंट कॉमन पाएंगे, that we could not have free approach to Middle East. We are always constrained by various factors. Most important, India's energy dependence. Clear this much to everyone? ठीक है. Total length of तापी pipeline project is approximately 1814. Approx याद रखिएगा, around 1800. UPSC absolute figure में डील नहीं करता और आपको करना भी नहीं है. So क्या क्या याद रखना है आपको? For prelims purpose, first it's a pipeline that links to whatever is this gas field to Fazilka, India. It's around 1800 kilometers. ठीक है. It has a designated transportation capacity of around 33 billion cubic meters. बस ये कुछ फैक्ट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर. अराउंड 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी, नेचुरल गैस सप्लाई करेगी फ्रॉम दिस गैस फील्ड टू फजिल्का, इंडिया. इट विल ब्रिंग द गैस and it will be around 1800 kilometers in length and will have around a capacity of 33 billion cubic meters. ठीक है. And each country will have equal stake. All the 4 countries which are the member of TAPI will have equal stakes, no higher, no lesser. And it was conceptualized, देखिए 1990s में इंसेप्शन हुआ था, फाइनली कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई अराउंड 2015. रीजन वही मैंने आपको बताया. दिस पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट इज इंपेयरिंग इंडियाज अप्रोच. अभी थोड़ी देर में हम पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा और देख लेंगे. सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझा ही दिया. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर. इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएसए. आफ्टर चाइना एंड यूएसए, इंडिया इज द third largest energy consumer. We need a direct and reliable source of natural gas, which will bring independence in foreign policy, will lower the prices of every commodity in India. You have na CNG, that's a natural gas. हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास ये पाइपलाइन होगी? We can fit our trucks with CNG, and CNG will be cheaperly available in India because of this pipeline. Then all the food commodities price will go down automatically. It's very, very significant, not only for independence of foreign policy, but also for India's economic needs. Clear to everyone? बाकी इसमें लिखा है, देख लेना. Natural gas is a cleaner fossil fuel compared to coal and oil, because है तो ये fossil fuel ही. Natural gas is a fossil fuel. It is often found with the petroleum deposits. आप ज्योग्राफी में करेंगे, जहां पे भी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं, उनके जो टॉप लेयर होती है, वहां पे यूजुअली यू विल फाइंड नेचुरल गैस. ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव. तो इट्स रिलेटिवली क्लीनर, नॉट द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट रिलेटिवली क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी. बाकी तो इंडिया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट मैंने आपको समझा ही दिया. इट विल बाईपास द मिडल ईस्टर्न सेक्टर. और हाँ, इसमें तापी है. इसी तरह से अगर आपको पता हो तो वी आर ट्राइंग टू एक्सेस सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया इज रिच इन मिनरल्स like nuclear minerals as well. So we want to access Central Asia. अब कैसे access कर सकते हैं? हम पे 2 रास्ते हैं. We can go from China or we can go from Pakistan. उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, because they are like a hut. इंडिया बीच में है और चाइना पाकिस्तान में ऐसे है. इंडिया you have here. तो यहाँ पे you have पाकिस्तान, यहाँ पे you have China, and you do not have direct land connect to Central Asia. को समझ में आ रहा है? We have to access Central Asia so that we can dilute our dependence on Middle East, and which is very, very, very significant. ठीक है. पाकिस्तान से हमारे कुछ रिलेशन अच्छे नहीं है. चाइना वैसे भी रास्ता देगा नहीं. चाइना से हम जा नहीं सकते because right now we are in a cold war scenario with China. क्योंकि आपको पता होगा we are with a US bloc called, previous क्लास में करवाया था तो मुझे याद आ रहा है, Quad, Quadrilateral Security Coordination Group. We are the part of Quad, which is primarily created against China. China हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं. It will not give us access to Central Asia, पहली चीज. सेकेंड चीज, इट्स हिमालयन रीजन, तो anyway it will be very costly. ठीक है, तो कोई सेंस भी नहीं बनता. बचा इकलौता हमारे पास पाकिस्तान. तो पाकिस्तान से फ्रेंडली रिलेशंस आर वेरी, वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया. This is what current Foreign Minister Jaishankar has also said. India cannot continue with unsettled border, unexplored opportunity. India cannot continue with unsettled border and unexplored opportunities. और एक चीज हमेशा याद रखिए, to become a superpower, your house must be in order. Why America is a superpower? Because America has friendly neighbors. अगर entire American army is in Iraq and Afghanistan, तो अमेरिका को टेंशन नहीं होती कि कल कनाडा अटैक कर देगा. But the point, when you are secure at home, आप अपने केस में देख लीजिए, when you, if your family is supportive, your relatives are supportive, you can achieve anything.
यू कैन टेक एज बिग रिस्क एज पॉसिबल अगर फैमिली सपोर्टिव हो। अगर फैमिली सपोर्टिव ना हो तो आप कितने भी तीर मार खाओ, आप रिस्क नहीं ले पाते। तो सेम केस यहाँ पे, इफ वी हैव फ्रेंडली चाइना इन पाकिस्तान, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट नॉनदलेस इन थ्योरी इफ वी कैन हैव, देन वी विल बी अ बेटर प्लेस टू बिकम अ सुपर पावर। इनके फ्रेंडली बने बिना हम नहीं बन सकते। अ सुपर पावर इज अ पावर दैट इंटरवीन्स एवरीवेयर। मान लेते हैं कल हमें कोई एडवेंचर करना है कहीं फार फ्लंग प्लेस, मान लेते हैं लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में वी हैव टू कैरी एन एडवेंचर। अब कैसे आर्मी भेजें? हमारी आधी आर्मी तो पूरी उसमें लगी हुई है। मान लेते हमने आर्मी भेज दी लैटिन अमेरिका में, पता लगा कल पाकिस्तान घुस गया, मुंह नहीं घुसा तो चाइना घुस गया। ठीक है। और एक और आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस बीआरआई के तहत याद रखना, चाइना एंड पाकिस्तान राइट नाउ आर वन। China has made too much investment in Pakistan as the part of Chinese Belt and Road Initiative, in which it has CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. It has made too much of investment in Pakistan, and right now you can virtually say that Pakistan is China's colony. और इसीलिए आप हर वक्त सुनते हैं हमारे जितने मिलिट्री ऑफिसर वो क्या कहते हैं, वी आर इन अ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो। वी आर इन अ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो। अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो चाइना विल बी लाइक, आई हैव इन्वेस्टमेंट देयर, यू आर हर्टिंग माय इन्वेस्टमेंट, आई एम इन द वॉर। अगर आप चाइना पे अटैक करेंगे तो इट विल से टू पाकिस्तान, आओ बेटा लड़ो हमारे लिए। दैट्स हाउ कॉलोनी वर्क्स। सो वी आर इन अ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो। सबको बात क्रिटिकल है? ठीक है, क्लियर? सॉरी। तो वी हैव टू हैव अ फ्रेंडली नेबर इन पाकिस्तान, बट सॉरी टू से जो करंट पॉलिसीज चल रही हैं उसमें फ्रेंड बन नहीं पाएगा, बिकॉज you cannot, देखिए, this is what all scholars are of one opinion, do not demonize our neighbor for your internal politics। कभी भी आप नेबर से दूर जितनी कंट्री आप उनको कितना भी डीमनाइज करो, जिसको गाली देनी दो, लेकिन डू नॉट डीमनाइज योर नेबर फॉर योर इंटरनल पॉलिटिक्स, बिकॉज देन यू विल लूज ऑप्शंस। अब आप इमेजिन कीजिए, आप 24 सेकंड पाकिस्तान को गरिया रहे हैं, हमारी मीडिया देखिए ओवर जिंग्विस्टिक। तो अगर हम पाकिस्तान से कोई नेगोशिएशन करना भी चाहेंगे तो भी पाकिस्तान नेगोशिएट नहीं करेगा। सीधी सी बात है ना, इफ यू आर बैक बिचिंग समबडी, उसके बाद आप कहते हो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, कैसा बेस्ट फ्रेंड? ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो हमें थोड़ा मीडिया पे कंट्रोल भी चाहिए। हर वक्त पाकिस्तान अच्छी चीज नहीं है, और ऑल स्कॉलर्स आर ऑफ वन ओपिनियन इन दिस, यू कैन नॉट एट एनी कॉस्ट हैव एन एंग्री नेबर, और खासकर जब आपके पास दोनों के दोनों नेबर एंग्री हो। हमारे दो ही इकलौते प्यारे नेबर बच्चे हैं और दोनों ही एंग्री हैं, and that could be a dangerous scenario for India, particularly vis-a-vis Pakistan। सबको क्लियर है? This is what India's geopolitical interest in the region। इसलिए मोदी जी ने लॉन्च किया था इंडिया नेबरहुड फर्स्ट, जो कभी चला नहीं। क्लियर? बाकी तो आपको पता ही है, रिलेशन मैंने समझाई दी सारी चीजें। अब लेट्स सी इंडिया पाकिस्तान इक्वेशन क्विकली, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया पाकिस्तान इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कांति वाजपेयी, India's foreign policy vis-a-vis Pakistan has gone from number of phases. When Modi government came to power, he initiated co-opt and defect policy. He said, I will talk to Pakistan but on my terms. I will talk to Pakistan but on my terms. If you will not meet my terms, I will defect. समझ में आया? Co-opt if you agree, defect if you don't agree. इसके लिए कोशिश भी की गई थी। अगर आप देखें तो वी इनवाइटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, व्हेन मोदी जी टुक ओथ इन 2014, ही इनवाइटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू ओथ ओथ। और उसके बाद क्या करा? पाकिस्तान ने बोला मुझे बात करनी है किससे? हुर्रियत लीडर से। हुर्रियत लीडर, आपको पता हो जम्मू कश्मीर में एक सेक्शन था, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हमेशा से नहीं रहा है। 1980s में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म आया था, और वो भी एक बहुत ही पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें यूएस का भी बहुत बड़ा रोल था। बिकॉज रिमेंबर, यूएस वॉज नॉट इंडियाज फ्रेंड ऑलवेज, और कोई भी इंडिया का दोस्त नहीं है ऑलवेज, और हम भी किसी के दोस्त नहीं है ऑलवेज। आईआर में दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे आर नो परमानेंट एनिमी, द ओनली परमानेंट थिंग इज इंटरेस्ट। और यूएस अभी हमारे साथ है बिकॉज यूएस नीड्स अस अगेंस्ट चाइना, इसलिए नहीं कि यूएस लव्स अस, बोलते कुछ भी हो। बात क्लियर हुई? सो इन दैट सिनेरियो पाकिस्तान के साथ कौन था? यूएस था। फ्रॉम 1971 टू 1990s, जब तक यूएसएसआर खत्म नहीं हो गया, यूएस, Pakistan, China were on the one side, India, USSR were on the other side। आज इक्वेशन थोड़ी अलग है। आज इंडिया along with Japan, Australia and USA are on the one side, China, Pakistan and Russia are on the one side। हमारे कोई खास रिलेशन चल नहीं रहे। बात क्लियर है? तो इक्वेशन चेंजेस एवरी टाइम। तो सिमिलर सिनेरियो में
पाकिस्तान ने डिमांड किया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करने की. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाज द लीडर who did not like India's democracy and they were trying to separate Jammu Kashmir more or less. That is called हुर्रियत कॉन्फ्रेंस. तो हमने उन्हें इनवाइट किया ओथ टेकिंग सेरेमनी में. तो हमने कोऑप्ट करने की कोशिश करी बट ऑन इंडियाज टर्म. जब उन्होंने बोला हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करनी, हमने क्या कर दिया? क्लियर सबको? कोऑप्ट एंड डिफेक्ट पॉलिसी. उसके बाद मोदी गवर्नमेंट मूव टू ब्लेम एंड शेम. We decided पाकिस्तान ऐसे नहीं मानेगा, so we started blaming Pakistan for terrorism and shaming Pakistan on all international forum. इसलिए आप देखिए आज अभी भी मोदी जी अब कहाँ गए? यूएस गए. पाकिस्तान का नाम लिए बिना जो मेन पॉइंट उन्होंने बात करी है वो टेररिज्म की बात की. वो किसी भी प्लेटफॉर्म में G20 पे चले जाए, G7 में कभी इनवाइट हो जाए, यूएन चले जाए, कहीं भी चले जाए, he always talks about terrorism for sure. वो इसलिए भी क्योंकि और कुछ टॉक करने को बचा नहीं है. इसकी बात करेंगे भूखे लोगों की. ठीक है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट नॉनदलेस वी डिसाइडेड टू ब्लेम एंड शेम. उसके बाद वी ब्लेम्ड पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ऑन ऑल इंटरनेशनल फोरम. दिस वाज द सेकंड स्टेज ऑफ मोदी गवर्नमेंट पॉलिसी. थर्ड स्टेज ऑफ मोदी गवर्नमेंट मूव टू. अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी आपके कहने पे नहीं चलेगा. कोई भी. You wanted to isolate पाकिस्तान, पर अगर अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में तो आप कितना भी कोशिश कर लो अमेरिका उसे नहीं छोड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम वी आर इन क्वाड अलोंग विद अमेरिका और वी आर मूविंग टुवर्ड अमेरिका. हम डिफेंस एग्रीमेंट काफी सारे साइन कर चुके हैं. वी आर नाउ आर म्यूचुअल डिफेंस पार्टनर काइंड ऑफ. ठीक है. सो अमेरिका सेड टू अस कम टू यूक्रेन वॉर. वी वर लाइक नहीं, तुम दोस्त हो पर इतने भी अच्छे नहीं. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. दूर रहो, हम नहीं जाएंगे यूक्रेन में बिकॉज अवर इंटरेस्ट डज नॉट सेटिस्फाई इन यूक्रेन. जबकि हम किसके साथ हैं? क्वाड में. तो नोबडी विल कम टू योर असिस्टेंस. कीप दिस इन माइंड. आईआर में जितनी टीटी आप साइन कर लो, ऑल टीटी आर पीस टाइम अग्रीमेंट्स. कितनी भी बड़ी टीटी आप साइन कर लो, वॉर टाइम में कोई गारंटी नहीं वो टीटी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी. इन अ वॉर टाइम नोबडी विल कम टू योर हेल्प अनटिल अनलेस यू हैव समथिंग टू गिव टू दैट. अगर हम कल चाइना से वॉर कर भी लेते हैं तो यूएस हमारी मदद को आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अनटिल अनलेस यूएस का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो. बात समझ में आ रही है? इट ऑलवेज हैपेंस इन आईआर. तो ऑल अग्रीमेंट जो आप न्यूज में सुनते थे ऑल आर पीस टाइम अग्रीमेंट ओनली. देयर इज नो गारंटी दे विल बी ओबेड इन अ वॉर टाइम. क्लियर दिस मच टू एवरीवन? सो क्या ये वर्क करेगा आइसोलेट पाकिस्तान? नहीं करेगा. पहले यूएस को जरूरत थी पाकिस्तान की बिकॉज यूएस वाज इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाज अ लैंड राउट टू अफगानिस्तान. चलो अब तो यूएस विड्रॉ कर चुका है अफगानिस्तान से, बट नॉनदलेस अब चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की. तो आइसोलेटिंग अ कंट्री डज नॉट वर्क. ये कोई व्यक्ति नहीं है कि आप आइसोलेट कर दोगे. व्यक्ति भी आइसोलेट नहीं होता वैसे. यू कैन ट्राई टू आइसोलेट योर फ्रेंड, फिर वो आईएस बन गया, फिर आप आइसोलेट हो गए. ठीक है. तो ये चलता रहता है. लास्ट हमारे पास कौन सी पॉलिसी है? ये करंट पॉलिसी है. टॉक्स एंड टेररिज्म डोंट गो टुगेदर. ऑन थियरी इट्स अ गुड आइडिया बट इन रियल लाइफ इट्स अ डिजास्टर. इन रियल लाइफ इससे बढ़िया मनमोहन सिंह की पॉलिसी बेटर थी. मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी टॉक्स विद बुलेट्स. मनमोहन सिंह पॉलिसी वाज टॉक्स विद बुलेट्स. मतलब आई विल टॉक टू पाकिस्तान, आई विल टॉक टू पाकिस्तान ऑन एनी फ्रंट, टेररिज्म, जम्मू कश्मीर, आई विल. पर जहां भी पाकिस्तान ने हरकत करी आई विल यूज बुलेट्स. दोनों चीजें पैरेलल चलाऊंगा. आई विल नेवर लीव नेगोशिएशन टेबल बट व्हेनेवर पाकिस्तान विल डू समथिंग आई विल रिस्पॉन्ड. कीप दिस इन माइंड. सर्जिकल स्ट्राइक मोदी गवर्नमेंट में पहली बार नहीं हुई है. सर्जिकल स्ट्राइक्स कांग्रेस गवर्नमेंट में भी पहले कई बार हो चुकी थी, लेकिन फर्क यह था कि कांग्रेस गवर्नमेंट नेवर मेड इट पब्लिक, और जो कि सेंसिबल ऑप्शन होता है. देखिए आईआर में आप पर्सनल रिलेशन की तरह डील नहीं कर सकते हैं. उन्होंने टेररिज्म करा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, आप उसे वर्ल्ड में प्रोक्लेम मत कीजिए. आप खुद सोचिए कल अगर मान लेते चाइना बोले कि मैंने इंडिया में आके कुछ किया है, चाहे उसने करा भी ना हो, इंडिया टॉलरेट करेगा इस बात को? अंडरस्टैंड द पॉइंट. अगर आपको पाकिस्तान में एक दोस्त चाहिए तो आप उसे हर वक्त गाली नहीं दे सकते. आपको चाहे पसंद ना हो, हमें पता है इट्स अ ट्रबल मेकर, इट्स अ सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, हमें सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वी विल टेक ऑल एक्शन. अगर टेररिज्म होगा पाकिस्तान की तरफ से तो वी विल ओपनली गो इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी, जैसे हमने करा. मोदी जी ने सही स्टेप लिया था.
लेकिन द प्रॉब्लम इज डू नॉट मेक इट अ पब्लिक अफेयर, और खासकर डू नॉट यूज इट फॉर इलेक्शंस। आप देखिए हर इलेक्शन में क्या होता है, मोदी जी ने घर में घुस के मारा, वोट देना है तो मोदी जी को देना। ये गलत है फॉर फॉरेन पॉलिसी। नेवर डिमोनाइज अ नेबर फॉर योर इंटरनल पॉलिटिकल पर्पसेस। पर मजबूरी भी है, इसके अलावा बचा क्या है, इलेक्शन भी जीतने होते हैं, ठीक है। एनीवे, बट इट्स अ वेरी डिजास्टर्स पॉलिसी। वी हैव टू हैव अ फ्रेंडली नेबर, अदरवाइज इंडिया कैन नॉट अचीव इट्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। के लिए हमें फ्रेंडली नेबरहुड चाहिए ही चाहिए, चाहे कितना भी बुरा नेबर हो। और आपको मैंने बता ही दिया, इंडिया पाकिस्तान में एज सच कोई एनिमोसिटी नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं इंडिया में, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में हु विल नेवर लाइक टू हैव गुड रिलेशंस। स्टेफन पी कोहिंस, पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली पाकिस्तानी आर्मी, अगर फ्रेंडली रिलेशंस हो जाएंगे तो पाकिस्तानी आर्मी कैसे जस्टिफाई करेगी पाकिस्तान के रिसोर्सेज को खा रही है वो दिन रात। बात समझ आए सबको? तो दिस ऑल आई हैव अबाउट टॉपिक। कोई भी किसी पे कोई कंफ्यूजन हो जल्दी पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज पे जाऊंगा। नहीं है, चलिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट न्यूज। दिस आई हैव फॉर इंडिया पाकिस्तान। PVTG, very important for prelims, particularly vulnerable tribal groups. We have tribes in India, a large number of tribes. Within tribes we have made categories, numerous categories. उनमें से एक ट्राइब है आपके पास PVTG। इसका देखिए पर्पस ऐसा समझिए, इंडिया में कोटा होता है, सिविल सर्विसेज में भी होता है, सॉरी ST रिजर्वेशन। और व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ST रिजर्वेशन? जनरल वालों को तो तकलीफ होती है, उसके अलावा ST में भी एक प्रॉब्लम है। दे आर सेम SC में जाता है, SC ST में इनकम क्राइटेरिया नहीं है। इफ यू आर बोर्न टू अ कास्ट ऑफ SC और ST, इट डजंट मैटर आपके पिताजी चाहे अंबानी के औलाद हो, तब भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। देयर इज नो इनकम क्राइटेरिया इन SC ST। OBC में है, OBC में आई थिंक करेंटली 8 लाख रुपीज है। तो अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, आप OBC रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते। यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ जनरल कैंडिडेट। सेम EWS में है, EWS में भी 8 लाख का क्राइटेरिया है। SC ST में कोई क्राइटेरिया नहीं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फ्यू कास्ट, SC इज अ बिग ग्रुप, within SC few castes are using reservation again and again and again and again. Same is with STs. तो हमारा पर्पस क्या था SC ST रिजर्वेशन का? टू एम्पावर ऑल SCs and STs, नॉट फ्यू कास्ट। इसे हम बोलते हैं क्लास विद इन कास्ट फिनोमिना। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज क्लास विद इन कास्ट। प्राइम एग्जांपल बनता है वैसे, देयर इज अ पर्टिकुलर, आपको पता होगा टीना डाबी का, ठीक है। टीना डाबी, दैट पर्सन थ्रू शी बिकेम IAS यूजिंग SC कोटा। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द डिस्प्यूट रेज्ड ओवर? देखिए टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इशू ऑफ रिजर्वेशन हियर। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देखिए हर फादर एंड मदर बोथ वर IAS यूजिंग कोटा। हर ग्रैंडफादर वर आल्सो इसरो में कुछ थे। So the thing is, she was not deprived by any indicator. She had best of schooling, she had best of education, and that's the point about, जैसे merit की हम बात करते हैं हमेशा, जब आप पॉलिटी करेंगे वहां पे आप करेंगे theories of equality। theories of equality में एक theory होती है equality of opportunity, which says I will have the starting line equal for everyone और finish line equal for everyone। भागो जैसे भागना है। That is basically theory of opportunity, sorry, equality of opportunity। But there is a problem here। रिजर्वेशन दिया गया था टू अपलिफ्ट एवरीवन। अब इशू क्या हो रहा है, जैसे मेरिट की हम बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम आता है मेरिट का। जैसे मैंने स्टार्टिंग लाइन सेम रखी है और एंड लाइन सेम रखी है, बीच में आपको जैसे भागना है भागो। कहने का मतलब, द पीपल हु आर मोर मेरिटोरियस, मोर हार्ड वर्किंग, दे शुड गेट हियर फर्स्ट। तो आपको सही लगता है मेरिट आर्ग्यूमेंट बढ़िया है, चंगा आर्ग्यूमेंट है? बोल दो हाँ ना तो बोला करो कम से कम। काहे? हाँ देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मैरिट इज अ सोशल लॉटरी ऑल्सो। जब आप थ्योरीज करेंगे यू विल गेट टू नो मैरिट इज अ सोशल लॉटरी ऑल्सो। आप फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर स्टडिंग हियर, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली दैट कैन सपोर्ट यू। यू आर फॉर्चुनेट। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ, ही कुड एक्सेस टू बेस्ट ऑफ एजुकेशन, बेस्ट ऑफ हेल्थ, टैलेंट है नो डाउट, बट द थिंग इज फ्यू पीपल आर बोर्न अपॉर्चुनियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी में क्या क्वालिटी है पीएम बनने की? ही इज अ गुड मैन बट नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, बट स्टिल ही इज द कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमें होना चाहिए था पर हम नहीं हो सकते, बिकॉज आई एम नॉट बोर्न टू गांधी फैमिली। बात समझ में आई?
So that is what the merit is about. Success जो होती है ना किसी भी व्यक्ति की, success is a cumulative of hard work, your social inheritance and your physical inheritance. अब जैसे प्राइवेट सेक्टर में there is a virtual biasness against female, जैसे हम बोलते हैं glass ceiling. It's a concept called glass ceiling. When you are recruited at equal level, आप गवर्नमेंट में भी देख लीजिए, आप नोटिस करना टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, टॉप रैंकिंग में रेयरली आपको वुमन मिलेंगी. आप सारे इक्वली रिक्रूट हुए और हो सकता है आपकी एज भी अच्छी हो, आप 21 साल में रिक्रूट हो गए तो आपके पास 40 साल की सर्विस है, अराउंड 39 ईयर्स की सर्विस है, और ऐसा हो ही नहीं सकता आप कैबिनेट सेक्रेटरी ना बनो. लेकिन फिर भी आप कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनोगे. क्यों नहीं बनोगे? बिकॉज देयर इज अ नेचुरल बायसनेस. और ये हमेशा काम करता है, सिर्फ जेंडर बेसिस पे नहीं, हर बेसिस पे काम करता है. जैसे मैं एग्जांपल पूछूं, मोदी गवर्नमेंट में अराउंड 89 इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेक्रेटरी होता है हाईएस्ट लिविंग आईएएस ऑफिसर जो होता है, हु हेड्स अ मिनिस्ट्री. तो देयर आर अराउंड 89 आईएएस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और आपको सबको पता है एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन मिला के 50% बनता है. हर साल 50% एससी एसटी ओबीसी में आते हैं. तो एक वाइल्ड गैस करिए, कितने लोग होंगे सेक्रेटरी लेवल पे जो एससी एसटी ओबीसी में होंगे? 50% रिजर्वेशन है उनके पास. देखिए ये होता है इक्वालिटी का, नेचुरल बायसनेस ऑलवेज वर्क्स. और प्रमोशन, आप आईएएस तो बन जाएंगे, उसके बाद जो प्रमोशन है वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा आप किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस जेंडर के हैं. सैड फैक्ट है पर रियल फैक्ट है. प्रमोशन तो देखिए गवर्नमेंट ही करती है, भारत सरकार ही करती है. और आप खुद सोचिए, मैं मान लेते होम मिनिस्टर हूं, तो मैं किसे अपॉइंट करना चाहूंगा? एक लेडी कॉप, एक लेडी सेक्रेटरी जिसमें मैं डिपेंड नहीं कर सकता, या एक मेल सेक्रेटरी जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे साथ रोज पैक लगाता है, जो ज्यादा पैसे देगा. नहीं, होम सेक्रेटरी लेवल पे ऐसा नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है मैं किस. देखिए अगर मैं होम मिनिस्टर हूं, मैं एक ऐसा सेक्रेटरी चाहूंगा जिसमें मैं 24 आवर डिपेंड कर सकूं, तो मैं 24 आवर्स डिपेंड कर सकूं, और क्या ही चीजों में प्रॉब्लम आती है. और यूजली आप नोटिस कीजिएगा, प्रमोशन हमेशा कास्ट, रिलीजन, जेंडर को ध्यान में रख के करती है. क्योंकि मैं हमेशा, आप देखिए फॉर एग्जांपल राज्यों में जब भी सरकार बदलती है, टॉप ब्यूरोक्रेसी बदल जाती है. जब भी गवर्नमेंट बदलती है, अगर जैसे यूपी में यादव ज्यादा है, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो आप नोटिस करना टॉप ब्यूरोक्रेसी में यादव होते हैं, डीएम सारे यादव होते हैं. ठीक है, सेम अगर किसी और की सरकार आ जाए, डीएम सारे उसी कास्ट के होते हैं. जैसे अभी किसी की सरकार है तो उनकी जो कास्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द डीएम इसमें यूपी में उन्हीं के कास्ट के हैं. टैलेंट अलग चीज है. रिमेंबर, आपकी सक्सेस, आप कहां पे खड़े हैं, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस इंडिकेटर. मेरिट एक पॉइंट है, लेकिन सोशल एंड फिजिकल इनहेरिटेंस भी एक पॉइंट है. सबको समझ में आया? तो सेम तीन डाबी वाला केस था, सेम एससी एसटी में केस है कि एससी एसटी में कुछ कास्ट who have used reservation are using reservation again and again. अब जैसे टीना डाबी ने अगर एससी की सीट ले ली, तो उसने किसका नुकसान किया? जनरल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम पे तो वैसे ही नहीं थे एससी का रिजर्वेशन. नुकसान किसका हुआ? एससी कम्युनिटी का हुआ, क्योंकि वो एक सीट जो उसने ले ली बिकॉज शी इज वेल ऑफ, वो किसी रियल एससी को जा सकती थी जिसके पास वाकई में कुछ नहीं है. और ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इट डज नॉट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू एवरीवन्स स्टेटस. अब यूपीएससी एक एग्जाम लेता है, एक ही एग्जाम लेता है. अब बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. ठीक है, कोई वेल ऑफ फैमिली से है, कोई वर्स ऑफ फैमिली से है, कोई गांव में प्रिपेयर कर रहा है, कोई शहर में प्रिपेयर कर रहा है. somebody has the money to come to Delhi, somebody does not have the money to come to Delhi. इसका मतलब थोड़ी ना वो लेस टैलेंटेड है. सबको बात समझ में आ रही है? अब इसीलिए सरकार क्या लाई? सरकार ने बोला कि मैं अगर 100 रुपए देता हूं तो मेजॉरिटी ऑफ मेरा मनी कौन खा जाता है? वेल ऑफ कास्ट. विद इन ट्राइबल्स, जो ट्राइबल पावरफुल हो चुके हैं, who have used my benefits, वो बार बार मेरा बेनिफिट इस्तेमाल कर रहे हैं. आई एम एलोकेटिंग 100 रुपीज एंड दे आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. सो मेरा जो पर्पस है टू ब्रिंग एवरीवन अप, वो कभी पूरा नहीं होने वाला. सबको समझ में आया? तो सरकार ने एक कैटेगरी बना दी ट्राइबल्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. सो दीज आर द ट्राइब्स विच आर बैकवर्ड अमंग द बैकवर्ड. क्लियर बात समझ में? इसमें फीचर्स हैं, आप सबको ये फीचर याद रखने हैं. दे हैव रिलेटिवली all these features, remember for sure. They have relatively stagnant socio-economic development, they have low literacy rate, they have declining population. These are the criteria on which government of India, not state, government of
इंडिया आइडेंटिफाइज द पीवीटीजी। तो दो फैक्टर आपको समझ में आया। पहला, दीज आर द इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई पीवीटीजी। सेकंड, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइज पीवीटीजी, स्टेट्स नहीं करते हैं। क्लियर है? पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, दैट इज लिंक्ड विद ऑल दिस ड्रामा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और पर्पस मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज इट इज नेसेसरी ऑल द रिसोर्सेज गिवन टू अ ट्राइब वर यूज्ड बाय द पावरफुल ट्राइब्स। वी वांटेड कि दिस बेनिफिट शुड स्प्रेड टू अदर पीपल आल्सो। और ये भी याद रखना, कब इंट्रोड्यूस किया था इसे? फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। ठीक है, शी गेव द स्लोगन ऑफ गरीब हटाओ। ठीक है, SC/ST में SC/ST में प्रॉब्लम ये है कि कोशिश की गई है, लेकिन अपोजिशन बहुत ज्यादा है, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी अभी इस पे अग्री नहीं कर रहा। देखिए, SC/ST एक बहुत ही वाइड ग्रुप है और बहुत ही वेरिएबल ग्रुप है। ट्राइब्स अराउंड इंडिया वेरीज इन देयर कंपोजिशन, देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयर स्टैंडर्ड्स। पर फिर भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि SC/ST कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। जो ओबीसी में है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से SC/ST में नहीं है। तो देखते हैं कब होता है। इसकी इसीलिए पता है कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। भारत सरकार जो सेंसस करा रही है उसमें कास्ट सेंसस नहीं है, वो रीजन अलग है, पॉलिटिकल रीजन है। बिकॉज देखिए, बीजेपी पॉलिटिक्स रन ऑन यूनिफाइंग हिंदूज एज अ वोट बैंक। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो क्या है? टू यूनिफाई हिंदूज एज अ वोट बैंक। कांग्रेस और बाकी पार्टीज की पॉलिटिक्स है टू डिवाइड हिंदूज इन कास्ट। इससे फायदा क्या होता है? अगर हिंदूज कास्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो जो लोअर कास्ट है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो वोट नहीं करता बीजेपी को फिर। तो इसलिए वो चाहते हैं कास्ट सेंसस। बीजेपी किसी कीमत पर कास्ट सेंसस नहीं करवाएगी। पॉलिटिकल एडवांटेज पर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। अब जैसे SC/ST में आपने बोला क्रीमी लेयर होना चाहिए, पर वो क्रीमी लेयर आएगा कैसे? नहीं, उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सी कास्ट फॉरवर्ड है, कौन सी बैकवर्ड। और वो कैसे पता लगेगा? कास्ट सेंसस। अगर कास्ट सेंसस होगा तो हमें पता लग जाएगा विच कास्ट इज फॉरवर्ड, विच कास्ट इज बैकवर्ड अमंग ओबीसी, अमंग SC, अमंग ST। तो हम क्या कर सकते हैं? जो फॉरवर्ड कास्ट है हम निकाल सकते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है हम ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है, पर वो होगा नहीं, क्योंकि देखिए वरना हर कोई डिमांड कर रहा है। अब जैसे जाट देखिए, हरियाणा में डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पाटीदार गुजरात में, पटेल सॉरी पाटीदार और पटेल, हाँ, उसके अलावा मराठा महाराष्ट्र में। दीज आर डोमिनेंट कम्युनिटीज, दे आर यूजिंग देयर पॉलिटिकल पावर टू गेट रिजर्वेशन। और रीजन आप सबको पता है, गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रही है धीरे धीरे, बिकॉज करंट गवर्नमेंट इज हाईली न्यू लिबरल, दे आर प्राइवेटाइजिंग एवरीथिंग, सेल इंडिया स्कीम इज ऑन। तो उसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट जॉब्स आर डिक्लाइनिंग, और यही आपका मणिपुर के वायलेंस का रीजन है। मैंने करंट इवेंट में बताया भी था, मणिपुर में यही तो रीजन है मेन। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है मेती, जो कि डोमिनेंट कम्युनिटी है मणिपुर की, वो कह रही है हमें रिजर्वेशन दे दो, ST का रिजर्वेशन। और ये प्रॉब्लम हर कास्ट में देखने को, आप हर स्टेट में चले जाइए, जो भी डोमिनेंट कम्युनिटी है वो रिजर्वेशन मांग रही है। पहले क्या होता था? बैकवर्ड कम्युनिटी रिजर्वेशन मांगती थी, अब फॉरवर्ड कम्युनिटी रिजर्वेशन मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि जो ऑरा ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज है वो भी दिमाग पे चढ़ा हुआ है। ऑरा ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज चढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट सर्विसेज खत्म हो रही हैं एट अ वेरी रैपिड पेस। गवर्नमेंट सर्विस बहुत तेजी से खत्म हो रही है इंडिया में, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड। तो जो बचा कुचा है उसमें सबको पार्ट चाहिए अपना, और फिर उन्हें क्या दिखता है? रिजर्वेशन। और दिस इज द प्रॉब्लम कि ऑल फॉरवर्ड कम्युनिटी, बीट जाट इन हरियाणा, आपका पाटीदार इन गुजरात, बीट मेतीज इन मणिपुर, ऑल आर डिमांडिंग रिजर्वेशन। और ये कब खत्म होगा? जब आपके पास एक प्रॉपर कास्ट सेंसस होगा, जो ये बताएगा विच कास्ट इज फॉरवर्ड एट व्हाट पैरामीटर्स। तभी तो आप उन्हें, अगर मान लेते हैं, अगर कास्ट सेंसस ने दिखा दिया कि जाट्स आर द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटी, सोशो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, फिर क्या होगा? अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे भी देगी तो सुप्रीम कोर्ट अन्यूल कर देगा। और द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन पीपल्स वोट। तो उसे कोई परवाह नहीं जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, वो लॉ के हिसाब से चलता है। तो आप अगर जैसे जाट को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी बीजेपी ने, महाराष्ट्र में मराठा को रिजर्वेशन मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रिजर्वेशन हटा दिए। उन्होंने कहा कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डज नॉट राइट ऑन पॉलिटिक्स। तो ये एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई फीजिबल ऑप्शन मुझे दिखता नहीं। बाकी आपको सोच सके तो देख लेना। ठीक है, क्लियर है सबको? तो पीवीटीजी कौन होते हैं? विच हैव दीज थ्री इंडिकेटर्स टू सेटिस्फाई, ठीक है, which of these three indicators satisfy? Who identify PVTG? Government of India. In which plan it was started?
fifth 5-year plan. These are basic fact about prelims, remember. And how many PVTGs are in India? याद रखिएगा, roughly 75. एब्सोल्यूट फिगर इतना जरूरी नहीं है, पर रफ फिगर याद रखिएगा, रफली 75. कुछ एग्जांपल्स वैसे हमने यहाँ नोट किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ज्वारा, जरावा, सेंटलीज, ओंगे ट्राइब्स इन अंडमान निकोबार, आपके पास बिरोहर, खरिया ट्राइब्स इन झारखंड, पनिया एंड कुरुम्बा ट्राइब्स इन केरला. ऐसी बहुत सी ट्राइब्स हैं. देयर आर 75 ट्राइब्स इन इंडिया व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज पीवीटीजी. ठीक है, चलिए. मेन चैलेंजेस आपको पता है, मेन चैलेंजेस व्हाट दे आर फेसिंग. हिस्टोरिकली दे आर मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्प्लेस्ड. इट्स अ कॉमन थिंग. इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रोल है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का भी रोल है. आप पॉलिटी करेंगे, उसमें आप करेंगे पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम में आप करेंगे पैसा एक्ट. पंचायती राज सिस्टम में आप कौन सा एक्ट करते हैं? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट. ये इतने पावरफुल एक्ट है. इसने रूरल एरिया में एक चीज होती है, बोलते हैं ग्राम सभा. ग्राम सभा इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पंचायत. जैसे एक विलेज पंचायत में मान लेते हैं 5 गांव आते हैं, तो उस 5 गांव के जितने भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. इट इज लाइक अ डेमोक्रेटिक डेलिब्रेटिव बॉडी. ठीक है. अब इसमें क्या है, अब ग्राम सभा पे पावर बहुत सारी है. इसके तहत, पैसा के तहत गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम लगेगी, कहां लगेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? ग्राम सभा डिसाइड करती है. तो अब सरकार को मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट देना है अडानी जी को माइनिंग का, तो आप प्रोजेक्ट के लिए जगह तो भाई ट्राइबल एरिया से में निकालोगे, क्योंकि दे आर द रिसोर्सेज स्टेट, जैसे झारखंड वगैरह हो गया. तो अगर आप वहां पे प्रोजेक्ट लाओगे, ग्राम सभा तुरंत रेजोल्यूशन पास कर देगी कि हमें नहीं चाहिए. ऐसा हुआ था उड़ीसा में, न्यामगिरी एपिसोड कहते हैं. वहां पे वेदांता एक कंपनी, उसे माइनिंग प्रोजेक्ट दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, कांग्रेस गवर्नमेंट की, सारी गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट. ठीक है. तो दे गेव द प्रोजेक्ट. ग्राम सभा ने वहां की बोला हमें नहीं चाहिए. इकोनॉमिकली गुड, पॉलिटिकली गुड, इकोनॉमिकली बैड. क्योंकि भाई माइनिंग प्रोजेक्ट होता तो कुछ रिसोर्स मिलते, उससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती, बट पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है. तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अंडर पैसा एक्ट द ग्राम सभा इज एम्पावर्ड टू डिसाइड. दे कैन डिसाइड ऑन एवरी पैरामीटर. लेकिन कमाल की बात यह है, ये एक्ट जब ही लगता है जब एरिया कैसा है. क्या हो रहा है यार, ये आईएएस बन के रहेगी. जब क्या होता है आपके पास रूरल एरिया होता है, तब पैसा लगता है. तो सरकार क्या करती है, उसे अर्बन नोटिफाई कर देती है. रूरल एरियाज को आपने अर्बन नोटिफाई कर दिया. अर्बन नोटिफाई करते पंचायती राज चला गया. पंचायती राज चला गया, फिर बेको जैसे बेचना है. दिस इज यू विल डू इन इकोनॉमिक्स. माइनिंग में, माइनिंग में सबसे बड़ा इशू यही आता है दैट माइनिंग एरियाज में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ. माइनिंग एरियाज में द लॉ इज व्हाट इज डिक्टेटेड बाय द कंपनीज. क्लियर द प्रॉब्लम यू हियर वी हैव. So this is, that's why they are facing. Second point, they have a high level of poverty due to limited access of market. They have a low literacy rate due to lack of schools. ठीक है. They have significant high health disparities and limited access to health. So जो पहले हमने पढ़ा था वो प्रीलिम्स था, ये सारा मेंस के लिए है. बात समझ में? These are all content for mains. What are the issues they are facing? और ये देखिए मैंने कंसेप्ट लिखा है यहाँ पे, संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट. नाम से क्या लग रहा है इसमें क्या होता होगा? हाँ, देखिए संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट, इसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. ये फिनोमिना क्या कहता है? दिस फिनोमिना सेज दैट अ नॉन डोमिनेंट कास्ट, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में a non-dominant caste tries to acquire the dominant caste socio customs. जैसे मान लेते हैं, अब लेकिन याद रखिए मैंने क्या बोला है, नॉन डोमिनेंट, डोमिनेंट. कहीं पे भी मैंने अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं बोला. जैसे मान लेते हैं कोई एक एरिया है जिसमें एसटीज है डोमिनेंट, वेल ऑफ है, मस्त है एकदम, और वहां पे ब्राह्मण्स है नॉन डोमिनेंट. तो ब्राह्मण्स किसका कस्टम अपनाना चाहेंगे? एसटीज का. बात समझ. हालांकि यूजुअली फॉरवर्ड कास्ट पे लगता है, पर संस्कृताइजेशन कास्ट का फिनोमिना का मतलब ये नहीं है कि लोअर कास्ट अपर कास्ट फिनोमिना अपनाएंगी. इसका मतलब ये है कि किसी भी एरिया में जो नॉन डोमिनेंट कास्ट है दैट विल ट्राई टू एक्वायर
the features of dominant caste. That may be anything. Dominant माने you have wealth, you have houses, you have prosperity in that area. That is dominant. Even to the exclusion of your own customs. Even to the exclusion of your own customs. That is called संस्कृताइजेशन of caste. और ये majorly हर चीज में लगता है. For example, if you have a friend group of a different origin, हमेशा कहते हैं ना, have a friend group which enhances you, not degrades you. और हमेशा जो आपका इंटेलेक्ट होता है, इट्स द एवरेज ऑफ योर फ्रेंड ग्रुप. अगर आप बेवकूफों के साथ बैठे हो, उनके साथ घूम रहे हो, तो योर इंटेलेक्ट विल डिग्रेड ओवर टाइम. If you have the people, if you have the company which is more better than you, then you will upgrade over time. That's always happen. So same चीज यहाँ पे है. सबको समझ में आ रही है कहानी संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट. So what is happening with PVTGs? A lot of PVTGs are giving up their customs for a dominant caste in their place, and this is also leading to loss of cultural identity of PVTGs. ये सारा मेंस का कंटेंट है, प्रीलिम्स से कोई नहीं पूछेगा. क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या करा है. फिर गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू पीवीटीजीज इन लोकल गवर्नमेंट. उसके अलावा एफर्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड राइट्स. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. नीचे मेंशन है वैसे कहीं पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये रहा, यहाँ पे लिखा ही है, हैज ब्रॉट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसके तहत क्या होता है, द ट्राइबल्स राइट ओवर फॉरेस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड. यू कैन लिव देयर एज अ रिकॉग्निशन आइडेंटिटी. गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो टेम टू प्रोवाइड पीवीटीजी हाउसिंग फैसिलिटी. अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जितनी स्कीम होती है उसमें एक डेडिकेटेड कंपोनेंट रखती है पीवीटीजी का. इन ऑल द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कीप्स अ डेडिकेटेड कंपोनेंट फॉर पीवीटीजीज. ठीक है, फॉर दैट जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसमें क्या होगा, दे विल बी डेडिकेटेड कंपोनेंट फॉर पीवीटीजीज. अगला देख लेते हैं. याद रखिएगा एक और बढ़िया सा स्कूल बनाए जा रहे हैं जिनका नाम है एकलव्य स्कूल. एकलव्य आपको पता ही है, महाभारत की कहानी. एकलव्य वाज अ लोअर कास्ट, पर्टिकुलर ट्राइबल और एससी था. ही ट्राइड टू गेट एन एजुकेशन. उस समय में एजुकेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द अपर कास्ट, तो इसलिए उसे एजुकेशन मिली नहीं. बट नॉनदलेस ही ऑब्जर्व्ड द्रोणा, आई बिलीव, एंड ही गॉट द लर्निंग एंड एवरीथिंग. अल्टीमेटली ही सैक्रिफाइस्ड हिज थंब. तो उसके नाम पे रखा गया है एकलव्य. क्यों रखा गया है? देखिए पीवीटीजीज में एक प्रॉब्लम आता है, दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप देयर चिल्ड्रन. स्कूल भेजने में मुश्किल होता है उन्हें. एक तो रिमोट इलाका होता है, इजी एक्सेसिबिलिटी नहीं है रोड वगैरह की, एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी और नॉट. वो कहते हैं हम स्कूल भेजेंगे तो कमाएंगे क्या. जैसे हमारी फैमिली इनकम है, इंडिविजुअल इनकम नहीं है, द एंटायर फैमिली. आप नोट ये बात याद रखिएगा, जितने आप ढाबे वगैरह देखे ना आपने, मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज ओनली फ्रॉम लोअर कास्ट. इंडिया में कास्ट एंड क्लास आर द सेम थिंग. इंडिया में कास्ट एंड क्लास आर द सेम थिंग. मेजॉरिटी ऑफ द जेल प्रिजन्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द अंडर ट्रायल्स आर फ्रॉम लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटीज. upper caste you will rarely find in prison, and upper caste children you will rarely find in child slavery. The reason being, Brahmin, if you are born Brahmin, ये system जो Hinduism, that's why Ambedkar hated this. Ambedkar hated Hinduism. The reason being, he said Hinduism is Brahmanism. And it's a fact, अगर आप ब्राह्मण पैदा हुए हो, there are high chances you will not die out of hunger. अगर आप जिंदगी में कुछ ना भी करें तब भी, क्योंकि आप देखिए आपके पैदा होने से मरने तक आपको ब्राह्मण की जरूरत है. Since the time you are born till the time you die, you need a Brahmin. The system is made in such a manner. अगर आप ब्राह्मण पैदा हुए हैं तो there are 99% chances you will never die out of hunger. अगर आप even if you do not work any time in your life, तब कह रहा हूं मैं. And in other caste, if you have not work, you will die out of hunger for sure. बात समझ में? इसके लिए हमने क्या करा? They said कि we cannot give our children to education. And we said ये तो भाई बात नहीं चलेगी. We need them for education. They must be educated. तो हमने क्या बोला? ठीक है, हम बनाते हैं स्कूल. वी हैव मेड एकलव्य स्कूल. एकलव्य स्कूल इज अ रेसिडेंशियल स्कूल. जैसे इंडिया में नवोदय स्कूल भी होते हैं, वो भी रेसिडेंशियल टाइप होते हैं, तो पर वो सबके लिए है. ये केवल पीवीटीजी पर्टिकुलर फोकस करता है, वैसे ट्राइबल एज अ होल. तो हम क्या करेंगे, उनके बच्चों को लेंगे, वहां पे खाना भी होगा, कपड़े भी होंगे, सब कुछ सरकार देगी एजुकेशन के साथ. बहुत अच्छा मॉडल है. क्लियर? तो रिमेंबर दिस एकलव्य स्कूल. उसके अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर
because tribes have different needs in terms of health. They live in a different socio-economic environment, so they have different needs. फॉरेस्ट राइट एक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, इट गिव्स राइट्स ओवर फॉरेस्ट. तो ये सारे एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर देम एंड रिमेंबर देम नॉट ओनली फॉर पीवीटीजी, फॉर एनी ट्राइब. ये जो इनिशिएटिव है दे अप्लाई टू ऑल ट्राइब्स. क्लियर एवरीवन? चलिए पीवीटीजी में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो हम अगला देते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग. नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम साइंस एंड टेक, दैट इज quantum computing. What is quantum computing? Recently IBM published a paper in which it claimed to have demonstrated a quantum computer could solve a useful problem today's conventional computer cannot. इस समय साइंस एंड टेक में there are some innovations going on that will change the face of what you see today. Literally they will change the face of what. जिसमें से एक है न्यूट्रिनो टेक्नोलॉजी, जो मैंने प्रीवियस क्लास में कवर की थी, प्रीवियस आई बिलीव. न्यूट्रिनो टेक्नोलॉजी, neutrinos are charged particle that can go through the earth. Right now हमारे बीच में से millions of neutrinos are going on. हमारे बीच में से समय millions of neutrinos are passing right now at this instance from our body. The reason being they never interact. Neutrinos are a very minute particle. They have virtually zero, not zero, virtually zero mass and no charge. So they never interact with anything in the universe. And that's why you do not feel them. अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो आपको फील होगा. Got the point? So they are the most significant development. Second significant development is quantum computer. They will change the face of the earth for sure. जैसे न्यूट्रिनो चेंज करेंगे वैसे ये चेंज करेगा. कैसे करेगा? आपके, अगर आपको पता हो तो आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, दे आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर्स एंड दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 0-1 binary system. They work on the principle of binary system. That is, the gate is closed or open. That is 0 or 1. This is called binary system. Quantum computer works not on bits. इसी को हम बोलते हैं bits. Quantum computer works on qubits. I'm going slow, थोड़ा समझ में आप लोगों को. Bits 0 और 1. That is, the gate is either closed or open. जो सर्किट होता है, अगर मैं सर्किट मान के चलूं इसे, तो बटन, जैसे आपके घर में बटन होता है, बटन या तो ऑन है या ऑफ है. दैट इज व्हाट 0 and 1 मींस इन हियर. इट इज कॉल्ड बिट्स. इसलिए आपने सुना ना, लोग कहते हैं ये 64 बिट सिस्टम है, ये 32 बिट सिस्टम है. विंडोज में सिस्टम आते हैं 64 बिट 32 बिट, इसी की बात होती है. ठीक है. दूसरा है आपके पास क्यूबिट्स. क्यूबिट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1. तो क्यूबिट क्या होता है? एक क्यूबिट आपका होगा 10. दिस इज कॉल्ड क्यूबिट. बिट में क्या है? या तो 0 है या 1 है. क्यूबिट में 0 और 1 दोनों एक ही टाइम पे है. बात समझ में आए? दिस इज कॉल्ड क्यूबिट एंड दे यूज द प्रिंसिपल, जो इसमें लिखा हो, देखिए क्वांटम बिट्स बोलते हो, क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स. दे यूज द प्रॉपर्टी कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन. इट इज फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स, हम फिजिसिस्ट नहीं है तो हमें करना भी नहीं है, पर थोड़ा याद रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे काम करता है. में लिखा होगा क्वांटम, नीचे नहीं है. क्वांटम सुपर इम्पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट. ये रहा entanglement. Entanglement is when two atoms are connected or entangled despite being separated. In quantum computers, 2 bits are connected in a qubit even if physically separated. जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमने क्या करा, बिट में 0 और 1 होता है, या तो स्विच ऑफ है या ऑन है. यहाँ पे क्या है? स्विच ऑफ भी है, ऑन भी है. तो इसका फायदा ये होता है दैट अ क्वांटम कंप्यूटर, जो छोटा सा लैपटॉप है, माई स्मॉल लैपटॉप, अगर वो क्वांटम कंप्यूटर है, इट विल बी एज फास्ट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर. इस समय दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर और मेरा छोटा सा लैपटॉप, इफ इट इज अ क्वांटम कंप्यूटर, इट इज दैट पावरफुल. इट विल लिटरली चेंज द वेज वी सी इन द वर्ल्ड. और इसका फायदा कहाँ होगा? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में, लाइक वेदर प्रेडिक्शन. वेदर प्रेडिक्शन में बहुत सारा डेटा होता है, तो सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं. तो इट कैन हेल्प अस डूइंग दैट. और वही आईबीएम ने भी बताया.
प्रिंसिपल याद है सबको? तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट qubits, sorry, bits, and the quantum computer works on qubits based on the principle of superimposition and entanglement. These principles are found in quantum physics. किस पे गेट्स? इतना भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ साइंस एंड टेक का। हाँ, मैंने किसी जमाने में पढ़े थे, बोलो। हाँ, तो गेट्स ही तो वर्क करते हैं, शायद हमने सबने पढ़ा होगा 11th 12th में साइंस, कंप्यूटर साइंस में गेट्स होते थे। गेट्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक ही टाइम पे क्लोज या ऑफ होता है वो। अब इतना तो डिटेल मुझे भी नहीं पता, साइंस एंड टेक वाले से पूछना, मेरे को जितना पता है मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। क्वांटम सुप्रीमेसी, तो बात समझ में आई? डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन बिट्स 0 और 1, quantum computer works on qubits, which is a combination of 0 and 1 at the same time. So if I give a problem to a computer, it will immediately solve it. बाकी कंप्यूटर क्या करते हैं? 0 1 0 1 0 1 0, आपने देखा ना, बड़ा सा अलगोरिथम होता है, 0 1 1 0, पता नहीं क्या करके होता है। It will work, ऐसा नहीं वर्क करेगा, it will have everything together. So as soon as I put a question to this quantum computer, it will immediately provide me an answer because it is present on and off at the same time. And the feature it used called entanglement, and please remember this, it uses quantum physics mechanism called entanglement and supercomputer. That's why it is had quantum supremacy. In 2019, Google claimed to achieve quantum supremacy, demonstrating that a quantum computer could perform a specific calculation faster than the world's most powerful supercomputers. ये मैंने आपको बताया था, मेरा लैपटॉप अगर क्वांटम कंप्यूटर, इट विल बी मोर पावरफुल than the world's fastest supercomputer who works on flops, teraflops. Quantum bits. Quantum bits are fundamental unit of information quantum computing. Unlike classical bits, which are 0 and 1 only, they exist in superimposition of state, that is 0 1 or in between. हमने in between देखा ना कैसे है? देखिए चार मैंने आपको फिगर बताए थे, कहाँ चला गया? या तो 0 1 होगा, या 1 1 होगा, या 1 0 होगा, या 0 0 होगा. It exists between on and off. डिजिटल कंप्यूटर में क्या है? या तो सर्किट ऑन है या ऑफ है वाला सीन चलता है, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, 0 होगा या 1 होगा. इसमें क्या है? इसके बीच में भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, इन बिटवीन इट वर्क्स. तो रिमेंबर दिस थिंग, दैट्स व्हाई इट कैन कैलकुलेट एवरीथिंग. क्वांटम पैरेललिज्म, ये टर्म्स है, मतलब याद रखिएगा. इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल इनपुट्स साइमल्टेनियसली. नो क्लोनिंग थ्योरम. Unlike classical bit, it is impossible to make exact copy of unknown quantum state due to no cloning theorem. इसमें एक इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट. ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन यू ट्राई टू ऑब्जर्व, जैसे आपके टैपिंग होता है ना, फोन टैपिंग, उसे ऐसे समझिए. जैसे फोन टैपिंग होता है, इसमें टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग, यू टैप द फोन एंड यू कैन लिसन. सेम इसमें क्या है? इफ यू ट्राई टू टैप द क्वांटम कंप्यूटर बिट, इट विल चेंज इट्स फॉर्म, इट विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल. और तुरंत मुझे मान लेते हैं मैंने एक मैसेज इनकोड किया क्वांटम कंप्यूटिंग में, मैंने एक मैसेज इनकोड किया क्वांटम कंप्यूटिंग में. जैसे वहां पे क्या होता है? 0 1 0 1 0 1, आपकी जो फाइल होती है, अगर आपने कभी देखा, उसका जो बाइनरी फॉर्म होता है, जो आप मूवी देखते हैं, उसका जो बाइनरी फॉर्म होता है वो 0 1 0 1 0 1 करके होता है. इसमें क्या होगा? क्यूबिट्स की फॉर्म में होगा, और एज सून एज आई विल ट्राई टू ऑब्जर्व इट, इट विल लूज इट्स फॉर्म. तो तुरंत मुझे पता लग जाएगा किसी ने क्या करा है, मैसेज से छेड़छाड़ करी है. बात समझ आए? तो देयर इज नो ऑब्जर्वर इफेक्ट पॉसिबल. तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर आल्सो सिक्योर कंप्यूटर्स. क्लियर? क्या इसी बंद कर दिया इन लोगों ने? सॉरी, इज अ सिक्योरिटी कंसर्न इवन फॉर व्हाट? अच्छा, यू वर सेइंग कि उनके पास भी तो क्वांटम कंप्यूटर होगा. हाँ ठीक है, तो हम उसका कुछ करेंगे. इस समय चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया क्वेस्ट करके, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस पे. एवरीवन, देखिए आई एम सेइंग इट्स अ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, बना नहीं है. जैसे न्यूट्रिनोज इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, सिमिलर तरीके से क्वांटम कंप्यूटर अभी टेस्टिंग फेजेस पे है, अभी बना नहीं है. अभी बनाने के लिए भी आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. जैसे कि जमाने में, अगर आपको याद हो, हम वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े कमरे भरे, तो उसी स्टेज पे है इस वक्त, कमरे वाली स्टेज पे. इट विल टेक टाइम टू कम टू अ लैपटॉप स्टेज, बट आई एम सेइंग व्हेन इट विल कम, इट विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. Clear सबको? That's why it is very significant. So cryptography, quantum algorithm like Shor's algorithm can be affect a large number of exponential factor. पता नहीं crypto algorithm
मशीन लर्निंग एंड एआई में ये बहुत काम आ सकता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यूपीएससी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वन प्रॉब्लम वी हैव वेरी क्रिटिकल, एआई पे सब लोग काम कर रहे हैं, इट्स अ डेंजरस थिंग। जैसे रिसेंट में अभी हुआ है, देयर वाज अ एआई ड्रोन, यूएस ने एक एआई ड्रोन बनाया था एंड इट वाज गिवन अ टारगेट टू किल समथिंग, उसका जो ऑपरेटर था वो उसे बार बार रोक रहा था। इट वाज गिवन अ टारगेट कि आपको इस टारगेट को मारना है, इट्स वाज अ एआई ड्रोन नॉट ऑपरेटेड बाय एनीवन, बट जो मैनुअल कंट्रोल जिसको दिया गया था, दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू स्टॉप दैट एआई ड्रोन फ्रॉम किलिंग सर्टेन थिंग्स, उस एआई ड्रोन ने उसे ही मार दिया। इट वाज लाइक काहे तुम इंटरफेयर कर रहे हो। दिस इज अ प्रॉब्लम विद एआई। देखिए एआई और हम में क्या फर्क है, वी ऑल हैव इंटेलेक्ट बट द डिफरेंस इज इट डज नॉट हैव इमोशंस। हम पे भी इंटेलेक्ट है बट हम पे इमोशन बेस्ड इंटेलेक्ट है। एआई के पास इंटेलेक्ट होगा हमसे बेटर, हम तो थक भी जाते हैं, इट कैन वर्क फॉर एवर बट विदाउट इमोशंस, सो इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन टारगेट्स एंड, जैसे आप अगर आर्मी में भी होंगे तो आप यूजली सिविलियंस को हर्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू किल अनदर सोल्जर बट विदाउट डैमेजिंग द सिविलियन, पर उसके लिए क्या होगा, उसे कोई मतलब नहीं, टारगेट मरना चाहिए, बाकी आसपास के मरे तो मर जाए। दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव विद एआई, बट ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग कैन वर्क इन एआई ऑल्सो, देखेंगे आगे क्या होता है जिंदगी में। फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वेदर फोरकास्टिंग में काम आ जाएगा, ड्रग डिस्कवरी में काम आ जाएगा, ऑल दिस प्लेसेस यूज सुपर कंप्यूटर्स एंड इट विल बी वेरी इजी टू यूज अ क्वांटम कंप्यूटर, इट विल बी स्मॉल, फास्टर देन सुपर कंप्यूटर्स। challenges quantum decoherence, मैंने बताया it is extremely sensitive to observer effect, that is called quantum decoherence because it is extremely sensitive to environmental noise or interference, extremely sensitive. Second, physical implementation, अभी मैंने आपको बताया it is not very easy, it is not very easy to have a small computer, ठीक है हो जाएगा टाइम में. Cost and infrastructure very very expensive and requires sophisticated, पानी भी नहीं है infrastructure. Next, India and the quantum computing. In this, India has a program known as National Mission on Quantum Technology and Applications. Within this, Government of India has launched, इस मिशन को याद रखिएगा सब लोग, द मिशन नेम इज National Mission on Quantum Technologies and Application. In 2020, Government of India launched NMQTA with the mission to accelerate development and adoption of quantum technologies in India, including quantum computing, quantum communication and quantum cryptography. तो अभी जैसा मैंने आपको बताया ये इवॉल्विंग फेज में है, जैसे आपका न्यूट्रिनोज इवॉल्विंग फेज में है, न्यूट्रिनोज इवॉल्विंग फेज में, ये भी अभी इवॉल्विंग फेज में है. कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER has collaborated with IBM to establish IBM ISER quantum computing lab in Mohali. तो मतलब कहने का ये है कि every country is working on quantum computing and it will literally change everything that we see. Clear? जो भी अभी याद रखिएगा इसका. Let's move to next news. क्या है next news? Bangkok Vision 2030. Okay, it is about BIMSTEC. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical Economic Cooperation. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इंडिया इज इन अ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री और है, बांग्लादेश, और किसी कीमत पे वी कैन नॉट हैव बांग्लादेश टू बिकम पाकिस्तान चाइनाज फ्रेंड. द रीजन बीइंग, अगर आपको पता हो, इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा कॉरिडोर है. तो इंडिया आपका मैप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा कॉरिडोर है, जैसे बोलते हैं हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द चिकन नेक, अराउंड 100 किलोमीटर वाइड है. नॉर्थ पे चाइना ऑलरेडी है, अगर साउथ पे बांग्लादेश भी चाइना की तरफ चला गया, दे कैन कट ऑफ मेनलैंड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड कैन वर्चुअली मेक नॉर्थ ईस्ट अ डिफरेंट कंट्री, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया था. पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बीच में कौन था? इंडिया. एंड दैट्स हाउ वी कैन कट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. सेम प्रॉब्लम कैन हैपन इन नॉर्थ ईस्ट, और इसलिए इंडिया इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव विज़ावी बांग्लादेश. और ये बात बांग्लादेश को पता है, जब आपको पता था ना सामने वाला आपके बिना रह नहीं सकता, तो आप फायदा उठाते हैं. सेम केस में बांग्लादेश हमारा फायदा उठाता है.
उसे पता है कि इफ इंडिया डज एनीथिंग बैड विद बांग्लादेश, बांग्लादेश विल बी लाइक ठीक है बाय बाय, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। एंड दैट और कौन होगा? चाइना। एंड समथिंग वी कैन नॉट टॉलरेट। ऑलरेडी वी आर एट अ टू फ्रंट वॉर, फिर हम किस फ्रंट वॉर में आ जाएंगे? थ्री फ्रंट वॉर। और थ्री फ्रंट वॉर हम किसी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। है दो भी मुश्किल है, पर दो में डिफेंस आसान है। टू फ्रंट वॉर में हम एटलीस्ट डिफेंस कर सकते हैं, ऑफेंस बेशक ना कर पाए पर डिफेंस कर पाएंगे। लेकिन थ्री फ्रंट वॉर में हम डिफेंस भी नहीं कर पाएंगे, कहां कहां से आर्मी को भेजाएंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, बजरंग को भेज देंगे। हाँ हाँ, अग्निवीर कब काम आएंगे, ये भी बात सही है। कैनन की जगह उन्हें लगाया जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए एनीवे, सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन, ये इसीलिए लाया गया था क्योंकि हमें एक बात क्लियर थी कि हम बांग्लादेश को बायलेटरल नेगोशिएशन में कमजोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम बायलेटरली नेगोशिएट करेंगे बांग्लादेश से, बांग्लादेश विल टेक मोर एडवांटेज एंड विल गिव लेस बेनिफिट्स टू अस। तो हमने सोचा क्यों ना हम मल्टीलेटरल नेगोशिएशन में जाए। सबको समझना बिम्स्टेक क्यों बनाया गया था? द प्राइम स्टेटेड पर्पस नहीं है, जो रियल पर्पस है बिम्स्टेक का। स्टेटेड पर्पस तो ये बकैती है, क्या लिखा है इसमें? हम टेक्निकल कॉपरेशन करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे, सारा का सारा ड्रामा है। रियल रीजन बिम्स्टेक को बनाने का ये था बांग्लादेश। हमें पता था वी कैन नॉट नेगोशिएट बांग्लादेश इन अ बायलैटरल फॉर्मेट, but in multilateral format there are high chances Bangladesh will yield to our demand. समझ में आया मेन रीजन? और रीजन सिंपल है, क्योंकि बांग्लादेश अगर दोस्त नहीं रहेगा तो चिकन नेक की प्रॉब्लम है, एंड दैट चिकन नेक इफ कैप्चर्ड बाय चाइना देन दे कैन कट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया, दे कैन वर्चुअली मेक नॉर्थ ईस्ट अ डिफरेंट कंट्री। क्लियर? चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं। दिस इज प्रीलिम्स बेस्ड डेटा, याद रखना है आपको एज इट इज। सॉरी, इसके नीचे आएगा। Bangkok vision क्या है? It's a recent vision that has been introduced by Thailand. Who has introduced this? Thailand. Thailand has introduced Bangkok vision, which aims to advance BIMSTEC toward prosperous, resilient, open region, fostering sustainable and balanced growth. बहुत सारे words हैं इसमें, कोई मतलब नहीं किसी का, but nonetheless, what is the purpose? Simple कहना चाहते हैं तो Bangkok vision aims to enhance cooperation among BIMSTEC country to have a literally technical and economic cooperation, जिसका purpose है to enhance it. Clear? Simply. अगला, an eminent group of individuals have been set up. So Bangkok vision aims to achieve by 2030 this BIMSTEC must be more integrated economically. उसके लिए क्या बनाया गया है? Eminent group of individuals have been set up in various ideas to oversee coordination mechanism. Clear to everyone? चलिए आगे देख लेते हैं। It will serve as a, बट याद रखिएगा बैंकॉक विजन जो है इट इज थाईलैंड्स विजन, इट इज नॉट येट एक्सेप्टेड बाय बिम्स्टेक। एक्सेप्ट हो जाएगा तब की तब देखेंगे। अब बिम्स्टेक के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम एज इट इज। पहला फैक्ट, बिम्स्टेक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। हाँ, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, G20, G7, OECD, जितनी भी है, इन सब में जो मेंबर्स हैं याद रखने हैं आपको। उसके लिए क्या करिए, गूगल करिए निमोनिक्स, गूगल करना निमोनिक्स, तो गूगल पे हजारों निमोनिक्स पड़े, कोई भी एक चुन लो, पर उसे ही रखना, फिर बदलना मत बार बार। हर बॉडी का आप निमोनिक्स रखिए, जिसकी मदद से आप याद रख सके कौन सा कंट्री मेंबर है कौन सा नहीं है। यूपीएससी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, जैसे G20 के बारे में पूछ चुका है कई बार। क्लियर है सबको? प्लीज रिमेंबर दैट, फॉर दैट यू कैन गूगल निमोनिक्स। तो इसमें कितने मेंबर है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसमें एक बेस्ट बात देखी, इसमें सारे मेंबर हैं सार्क के। एक और बॉडी है जिसका नाम है फील्ड बॉडी है, बिल्कुल ही फील्ड, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इट इज द साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। इसका रीजन क्या है? तो इंडिया पाकिस्तान है, हमारी बनती नहीं जरा सी भी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, देखिए साउथ एशिया में अगर प्रॉब्लम देखें, जैसे हम बोलते हैं रिवर्स रीजनलिज्म कंसेप्ट है, आप आईआर में करेंगे रिवर्स। पहला को व्हाट इज रीजनलिज्म, क्या होता है रीजनलिज्म? व्हेन डिफरेंट कंट्रीज कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ रीजनल आइडेंटिटी, डिफरेंट कंट्रीज come together to establish a
रीजनल आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड रीजनलिज्म। पर इंडिया किसका केस है? रिवर्स रीजनलिज्म का केस है, क्योंकि इंडिया अगर आप वर्चुअली देखें है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। केस ये कहा जाता है दैट इंडिया वंस अपॉन अ टाइम वाज अ वन, अभी भी इंडिया इज अ वन कल्चर वन आइडेंटिटी। पूरा साउथ एशिया आप उठा लीजिए, इट इज मोर लेस इंडिया एंड मोर लेस इट इज वन कल्चर वन आइडेंटिटी, बट एवरीवन इज असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। इंडिया में उल्टा हो रहा है, हम एक कल्चर एक आइडेंटिटी पहले से थे, अब सारी कंट्री इंडिपेंडेंस असर्ट कर रही हैं, और ये जरूरी भी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था टू नेशंस थ्योरी पे, टू नेशंस थ्योरी पे इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन होता है। मोहम्मद अली जिन्ना एम्फसाइज that Hindus and Muslims are two nations who cannot live together. The theory is called two nations theory. और दुनिया में सिर्फ दो ही देश है जो धर्म के नाम पे बने हैं, पाकिस्तान एंड इजराइल। बाकी देशों ने धर्म अडॉप्ट किया है, वो एक अलग चीज है, पर जो प्रॉपरली रिलीजन के नाम पे बने हो, ओनली टू कंट्रीज हैव बीन मेड, दैट इज पाकिस्तान एंड इजराइल। तो पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप देखें कोई खास फर्क नहीं है सोशियो कल्चरल। पाकिस्तानी अगर लैंग्वेज का निकाल दें तो इफ अ पाकिस्तानी इज स्टैंडिंग और इंडियन स्टैंडिंग, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ स्टार्क डिफरेंस कि हाँ भाई ये पाकिस्तानी है इंडियन है, देयर इज नो स्टार्क डिफरेंस। बट स्टिल पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा? इट वांट्स टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। आप आया में एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान की पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात में निकल गई, इट वांट्स टू जस्टिफाई दैट इट हैज राइट टू एग्जिस्ट। पाकिस्तान हैज टू जस्टिफाई इट हैज राइट टू एग्जिस्ट। और वो जस्टिफिकेशन कहां से आती है? जिन्ना ने बोला था मुस्लिम विल नेवर बी ट्रीटेड लाइक एन इक्वल सिटीजन इन इंडिया, दे विल ऑलवेज बी अ सेकंड क्लास सिटीजन। So India's continuation as a secular democracy which has president as Muslim, which has army officers as Muslim, which had a Muslim dominant independent state, अब तो नहीं है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। So all this, देखिए पाकिस्तान has always been a frustrated country। हैदराबाद इंडिपेंडेंस जो ऑटोनोमस स्टेटस है जम्मू कश्मीर के अलावा किसी के पास नहीं था, ऑटोनोमस स्टेटस। India's continuation as a secular country where Muslims are not treated like a second class citizen in theory. So the problem is Pakistan feels frustrated. Pakistan बनाया किस आर्गुमेंट पे गया था? That Muslims will never be treated equal in India. But they are having everything. We have president who's Muslim, we have speakers as Muslim. So this continuation, this frustrates in Pakistan. और पाकिस्तान में लगे टू नेशन थ्योरी पे, बात समझ में आई सबको? दे सेड मुस्लिम्स विल नेवर बी ट्रीटेड इक्वल इन इंडिया, वी नीड अ नेशन ऑफ आवरसेल्फ। दे गॉट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी ने एक ही काम अच्छा किया था, टू डिवाइड पाकिस्तान। जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ दो हिस्सों में तो वी वर लाइक कहां गई टू नेशन थ्योरी? आपने क्या बोला था? दैट मुस्लिम्स विल नेवर बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी इन इंडिया। आप अपने लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे। हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लैंग्वेज इज वेरी नियर और डियर टू एवरीवन्स हार्ट। सो द बांग्लादेशीज दे सेड वी मे बी मुस्लिम बट वी आर बंगाली मुस्लिम, नॉट उर्दू मुस्लिम। बात समझ में आई? दे सेड वी मे बी मुस्लिम बट वी आर बंगाली मुस्लिम, नॉट उर्दू मुस्लिम। डू नॉट इम्पोज योर वे ऑफ लिविंग ऑन अस। और ये कोई टॉलरेट नहीं करता। इस बात में इंडिया बहुत बढ़िया रहा है। इन इंडिया में वी नेवर इम्पोज्ड आवर वैल्यूज ऑन एनीवन। जिसने जैसा जीना चाहा हम लोगों ने जीने। तमिलनाडु ने बोला हमें हिंदी नहीं बोलने, हमने कहा फाइन, मर्जी है तुम्हारी। सदर्न स्टेट ने बोला हमें लिंगुअल रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ओके फाइन। नॉर्थ ईस्ट ने बोला हमें इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, हमने कहा फाइन। नॉर्थ ईस्ट में आप घुस नहीं सकते, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर की 4 स्टेट्स है, बिना राज्य सरकार की परमिशन के। दे आर नोन एज इनर परमिट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है। और एक और चीज, नागालैंड में भारत सरकार, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कोई भी बनाया हुआ कानून नागालैंड में नहीं लगता जब तक नागालैंड लेजिस्लेचर अप्रूव ना करे। नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अप्लाइज इनटू द नागालैंड विदाउट नागालैंड्स लेजिस्लेचर अप्रूविंग इट। उसके अलावा इंडिया में वी हैव शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 स्टेट्स। देयर ऑटोनोमस स्टेट यू कैन नॉट एंटर। इन फंडामेंटल राइट्स यू हैव अ चैप्टर, सॉरी, इन चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट यू हैव अ राइट दैट इज कॉल्ड राइट टू मूवमेंट, आर्टिकल 19 में है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। But that right is restrained from scheduled areas. Scheduled area में आप घुस नहीं सकते बिना परमिशन के।
ये सब हमने क्यों किया? बिकॉज वी वर लाइक, आपको जो पहनना है पहनिए, जो खाना है खानिए, जो बोलना है बोलिए, वी विल नॉट इम्पोज वन वैल्यू। हम हिंदी इम्पोज नहीं करेंगे सब पे, जिसको जो बोलना है बोलो, बट स्टे इन इंडिया। बात समझ में? और हमने अच्छा करा था। दुनिया में एग्जाम्पल है, देखिए आप इंडिया के नेबर ही देख लीजिए। श्रीलंका सिविल वॉर में पड़ा रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, किस बात पे? सिर्फ इसी बात पे, सिंगलीज वर्सेस तमिलियन। दे वर ट्राइंग टू इम्पोज सिंगलीज ऑन एवरीवन। उस पर पड़ा। म्यांमार में देखिए क्या हो रहा है। एक्सेप्ट इंडिया, यू कैन नॉट फाइंड वन एग्जाम्पल इन द एंटायर साउथ एशिया विच हैज बीन अ स्टेबल कंट्री, जबकि इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी। बात समझ में? बिकॉज वी नेवर impose anything. We never impose one value, one culture, one food, one idea on the entire India. We let the India live the way it wants. ये बात समझे? But Pakistan has been made in the name कि Muslims will be second class citizen in India and they must have their own state. बात समझे? अब अगर पूरा साउथ एशिया सार्क के तहत रीजनल आइडेंटिटी बना लेता है तो पाकिस्तान का क्या होगा? Got the point? If SAARC becomes a regional identity like European Union, which has their own flag, own consulate, own parliament, own currency, then what will happen to Pakistan as a country? इसीलिए इंडिया SAARC is a case of, सबको समझ आया how it is reverse regionalism? अब इसके फेलियर के कारण हमने क्या बना दिया? तो दोनों पर्पस क्लियर हो गए। फर्स्ट पर्पस, वी वांटेड टू नेगोशिएट विद बांग्लादेश इन अ मल्टीलेटरल फॉर्मेट। सेकंड, वी वांटेड टू डू अवे विद सार्क प्रॉब्लम, क्योंकि सार्क में कौन कौन से पर्टिकुलर ट्रबलिंग कंट्री? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए इसमें वो कंट्री नहीं है, बाकी सारे हैं। इसमें एक्स्ट्रा में कौन है हमारे पास? सॉरी, वो सार्क में है। सार्क में हमने क्या करा? बिम्स्टेक में जो ट्रबलिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनको निकाल दिया गया और बाकी कंट्रियों को रख लिया गया। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास थाईलैंड और आ गया साइड में से। इसमें वैसे म्यांमार भी, आई थिंक, हाँ म्यांमार एंड थाईलैंड। क्लियर? चलिए, तो याद रखिएगा सब लोग, द मेंबरशिप it is created by Bangkok Declaration 1997. The membership is of 7 states. It covers around this much million and this much million. Not important point, rough idea रख लेना, कोई नहीं पूछेगा, just have a rough idea. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक इज टू प्रमोट, मैंने आपको बता दिया था, कहने की बातें, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। दीज आर द स्टेटेड प्रिंसिपल्स। बिम्स्टेक होस्ट हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट लेवल एवरी 2 years। तो बिम्स्टेक का समिट कितने साल में एक बार होता है? 2 साल में। याद रखिएगा, बिम्स्टेक समिट हैपेंस once in a 2 year. That will be called head of the state or government summit. Apart from this, BIMSTEC also have ministerial meetings and senior official meeting which meet regularly as per demand. Clear everyone? तो please these are prelims fact. BIMSTEC का secretariat कहाँ है? Dhaka, Bangladesh has the secretariat of BIMSTEC. BIMSTEC has several working group and task force. क्योंकि BIMSTEC का नाम ही क्या है? Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation. Multi-Sectoral. So what we have done is we have divided all the issues into sectors. और हर सेक्टर पे हमने क्या रखा हुआ है? A working group and a task force that will try to operate on that sector, and will try to achieve cooperation among BIMSTEC countries. Clear? Baki, BIMSTEC follows project-based approach to implement cooperative activities. Member state propose projects and initiative for consideration and funding under BIMSTEC. So you have sectoral cooperation for which you have working groups and task force. Apart from this, any member can propose any project, which initiative which will be taken by BIMSTEC, discussed, debated and ultimately approved for funding. यही हम चाहते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से देखिए हमारा एक ही इंटरेस्ट है, वी वांट अ पैसेज फ्रॉम बांग्लादेश। जो मेन हमारा इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, we want a direct passage from Bangladesh to Northeast, but a war time guarantee.
जो कोई देश नहीं देता। हमारा मेन देश बांग्लादेश में क्या है, वी वॉन्ट अ वॉर टाइम गारंटी ऑफ अ डायरेक्ट पैसेज टू नॉर्थ ईस्ट, कि अगर कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कोई बात आ भी गई, मान लेते हम चाइना के साथ वॉर में, सबसे पहले चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा करेगा। किसी भी वॉर में सबसे पहले उस पर किस पे कब्जा करना चाहेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। तो उस केस में हमारे पास एक डायरेक्ट लैंड कनेक्ट होना चाहिए, वरना आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो म्यांमार के थ्रू जाओ या बांग्लादेश के थ्रू जाओ। म्यांमार से हमारा इतना कोई इशू है नहीं, ठीक है, तो वहां से जा सकते हैं, पर वो बहुत लंबा पड़ेगा, घूम के जाना पड़ता है। बांग्लादेश से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, तो हमारा मेन इंटरेस्ट बांग्लादेश में सिर्फ एक है, वी वांट अ डायरेक्ट लैंड कनेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट। प्रॉब्लम ये है, वो कोई देश अग्री नहीं करेगा। कॉमन सेंस है, आप किसी देश की आर्मी क्यों अपने देश से मार्च करने देंगे, पर ठीक है, इसीलिए हमने क्या कोशिश कर रहे हैं कि बिम्स्टेक के तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, ट्रेड मैकेनिज्म बन जाए, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट इट इज कॉल्ड। क्लियर सबको? सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या बताना है, पीपल कनेक्टिविटी ये वगैरह वगैरह। अगर कहाँ चला गया अग्रीमेंट और वो सारा प्रीलिम्स था, ये मेंस के लिए याद रखिएगा। अग्रीमेंट एट द बिम्स्टेक कौन कौन से हैं इस वक्त, बिम्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, बिम्स्टेक बुद्धिस्ट सर्किट, बिम्स्टेक हेरिटेज साइट, बिम्स्टेक पॉवर्टी एक्शन प्लान, बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया। These agreements are being negotiated as of now. अभी एग्रीमेंट पूरे नहीं हुए, दे आर जस्ट बीइंग नेगोशिएटेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमारे लिए है ये, मतलब हमें बांग्लादेश से क्या चाहिए, एक लैंड कनेक्ट चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए। वॉर टाइम तो नहीं मिलेगा, पर कम से कम पीस टाइम में ट्रेड मिल जाए, कि इंडियन जो भी ट्रेड है वो डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाए बांग्लादेश के थ्रू। पर वो कब हो पाएगा, जब हम क्या बन जाएंगे, पीटीटी। Clear to everyone? तो these are the project that is going on. अब challenges देख लेते हैं, what are challenges? BIMSTEC does not seems to have made much progress. Reason क्या है? Reason ये है कि India, which is the largest member of the grouping, is criticized for not providing a strong leadership. अब ये इंडिया के साथ प्रॉब्लम हमेशा रही है, India takes initiative but is unable to sustain an initiative. हम बहुत इनिशिएटिव लेते हैं और उनका मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंडिया इनिशिएटिव में। सेकंड इनिशिएटिव प्रॉब्लम है, Thailand and Myanmar are also part of ASEAN. It is a grouping of Southeast Asian nations. 10 nations हैं, they together called as ASEAN, which is a better grouping. तो Thailand and Myanmar often किस में इंटरेस्टेड रहते हैं, ASEAN में. So they are ignoring BIMSTEC for ASEAN, and India is known for not providing strong leadership. This is what we call, याद रखिएगा इस टर्म को, noodle bowl effect of regionalism. What happens is, in a region you have numerous bodies. इसके चक्कर में क्या होता है, you are unable to focus even on one. और साउथ एशिया में बहुत सारी बॉडीज, साउथ एशिया में आप पढ़ेंगे आयोरा है, इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन आई बिलीव, आयोरा इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन। उसके अलावा सार्क है आपके पास, बिम्स्टेक है, बीसीआईएम है, इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया में कि एक भी नहीं चल रही। व्हाट वी कॉल दिस, ये इफेक्ट आपको मिडिल ईस्ट में भी मिलेगा। मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है रीजनल कॉर्पोरेशन की, जैसे जीसीसी है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, उसमें भी ड्रामा चल रहा है। ठीक, उसके अलावा ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो केवल मिडिल ईस्ट की नहीं है और भी कंट्रीज में आती है। इस चक्कर में क्या है, एक प्रॉपर बॉडी नहीं है। जीसीसी हो गया, अरब लीग, ओआईसी, न्यूमरस बॉडीज है मिडिल ईस्ट में, विच ट्राई टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग मिडिल ईस्ट, बट बिकॉज ऑफ नूडल बाउल इफेक्ट कोई सी काम नहीं करती। नूडल बाउल इफेक्ट समझ में आपको सबको, इट इज बाउल में नूडल होते हैं ना, दे ओवरलैप ईच अदर एंड यू आर अनेबल टू फोकस ऑन वन नूडल। सेम थिंग गोज हियर, because of too many regional organization you are unable to focus even on one regional organization. चलिए, बीसीआईएम चाइना का प्रपोजल है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि तो ये किसका पार्ट है, बीआरआई का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है बीसीआईएम। जैसे आपका सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीमैक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। सिमिलरली यू हैव बीसीआईएम, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। इट विल लिंक चाइना डायरेक्टली टू इंडिया थ्रू म्यांमार एंड बांग्लादेश, और हम इसके सपोर्ट में नहीं है। क्लियर? तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, क्रिटिसिज्म है, बताओ कुछ हो तो
थक गए, बोलिए 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं भाई। क्या होगा, क्या जबरन नहीं, गला दर्द करना। हम्म, खत्म करते हैं सब, चलिए फोकस करिए सब लोग। We literally don't have time. Let us do this quickly. Miyawaki forest. The next news is Miyawaki forest. It's a noble method. I think प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इस पे, पता नहीं इस साल आया था पिछले साल आया था, मुझे याद आ रहा है कहीं देखा था मैंने क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आया था इस पे क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज लेटेस्ट मन की बात एपिसोड स्पोक अबाउट मियावाकी प्लांटेशन। सिंपली देखिए इसमें कुछ नहीं है, मैं समरी से बता देता हूँ। आपने प्रॉपर्ली सॉइल को प्रिपेयर करा, खासकर अर्बन एरियाज में बहुत काम का है। व्हाट यू डू इज यू प्रॉपर्ली प्रिपेयर द सॉइल, यू प्लांट द सैपलिंग्स इनटू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आप ट्रीज जो आप सीड्स डालेंगे आप बहुत छोटे डिस्टेंस में डालेंगे, इससे क्या होगा, दे विल कम्पीट विद ईच अदर। छोटे डिस्टेंस में क्या होता है, रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के दे विल बी वेरी लिमिटेड, सो एवरी सीड और एवरी सैपलिंग विल कम्पीट विद ईच अदर। तो आप पे इकलौता ऑप्शन क्या बचा, आप हॉरिजेंटल ग्रो नहीं कर सकते। जो सैपलिंग्स है दे आर सो नियर टू ईच अदर, दे कैन नॉट ग्रो हॉरिजेंटल, सो दे ग्रो वर्टिकल। they grow vertically in the top and bottom, so they go deep inside the earth and they grow on the top. Clear hai? This is called Miyawaki method. It's very good for urban plantation. अर्बन एरिया में कोई एरिया बहुत कम होता है, इन दैट केस यू कैन हैव अ प्रॉपर फॉरेस्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, प्लांट द सैपलिंग्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस, प्रोवाइड द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फोर्स देम टू compete फॉर रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ विच कुछ ऑफ कोर्स मर जाएंगे सीड्स, जो मर जाएंगे जो मर गए, ठीक है, जो बच गए दे विल ग्रो वर्टिकली rather than horizontally, they will grow vertically and they will go deep inside the earth, and that's why they have a vast root system. They will protect the soil, they will preserve the environment, and most importantly they will provide a forest in urban area, जो कि feasibility में नहीं आता है। क्लियर? तो आप जल्दी से पढ़ लेते हैं इसे। The Miyawaki forest method, also known as Miyawaki technique or
Miyawaki afforestation method is a reforestation or afforestation technique developed by Japanese botanist Akira, लड़की लड़का है पता नहीं, डॉक्टर अकीरा, लड़का ही लग रहा है मेरे को तो. It involves planting a dense and diverse mixture of native tree species in a small area. कोई जो मैंने बताया small area में you will plant diverse species at a very small distance so that they compete for resources with each other. Feature, it was developed in 1970s. Year important नहीं है, ठीक है, by Japanese, बस by Japanese botanist Dr. Akira Miyawaki. It aims to create, मैंने आपको बताया दिया, native tree species, local climate and whatever. The trees are planted close together in a dense pattern. From diverse culture, you plant the trees in close together in a dense pattern, typically within a spacing of around 30 to 50 centimeter between sapling. This create a competitive environment for the trees, encouraging vertical growth. वो जो बात बताई थी वही है इसमें. और इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ टॉल ट्रीज बन जाएंगे, कुछ शब्द रह जाएंगे, कुछ केवल छोटे छोटे प्लांट्स रह जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना रिसोर्स को कैप्चर कर पाता है. ओके, देयर विल बी अ इंटेंस कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज एंड वर्टिकल ग्रोथ विल बी देयर, सो यू विल गेट अ वेरी गुड गार्डन काइंड ऑफ थिंग. यू हैव टू, सॉइल में अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, एग्रीकल्चर वगैरह शायद पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, तो सॉइल इज हाईली डेफिशिएंट ऑन एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. सॉइल जो होती है यूजली इट इज वेरी मच डेफिशिएंट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर. दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर में वी यूज एनपीके फर्टिलाइजर. एन तो आपने सुना ही होगा, यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके बहुत डिसएडवांटेज है, वो कभी मौका लगेगा तो करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इसमें क्या होगा, यू विल प्रिपेयर द सॉइल, इंप्रूव इट्स फर्टिलिटी, मतलब यू विल यूज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, व्हिचएवर इज पॉसिबल, एंड यू विल प्रिवेंट एनी इन्वेजिव स्पीसीज. इन्वेजिव स्पीसीज कोई भी स्पीशीज होती है जो नेटिव की ना हो. इन्वेजिव स्पीशीज माने एनी स्पीशीज दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट इकोलॉजी. जैसे हम जो चीते बीते लाए थे, दे आर डाइंग, जो हम अफ्रीका से कहीं से लाए थे, एंड दे आर डाइंग. व्हाई दे आर डाइंग? बिकॉज दिस इज नॉट देयर क्लाइमेट, पर दे विल अडेप्ट. 6-7 जो लाए हैं, एक भी बच गया, एक तो नहीं, 2 तो चाहिए होंगे, पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी, ठीक है, 2 तो चाहिए कम से कम, तो एटलीस्ट 2 तो बचने ही चाहिए. एंड व्हाट विल हैपन ओवर टाइम, दे विल produce more and more, and they will reproduce more and more, and ultimately 2 से 3 जनरेशन बाद they will become natural inhabitant of India. उसमें टाइम लगता है. सेम चीज यहाँ पे, बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा. You will plant a lot of seedlings and some of them will die, some of them will grow just like a tree, some of them will remain a shrub, and some will grow like a proper tree or plant. ठीक है, and because there is a intense competition for resources, पर उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, बॉडी विद दम दी इन्वेजिव स्पीशीज. चलिए जो भी है, बेनिफिट्स आपको सिंपल है, रैपिड ग्रोथ एंड डेंस वेजिटेशन, एनहांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एंड मिटिगेशन, डीप रूट सिस्टम होगा तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड नहीं होगा. उसके अलावा एयर क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छी होगी, वाटर कंजर्वेशन होगा, हैबिटेट क्रिएशन, ऑल द थिंग्स अबाउट इकोलॉजी. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, ओके कूल. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का क्या होता है, वी इमिट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो व्हेन यू प्लांट अ ट्री, इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड पुट इट इनटू द सॉइल. इसे बोलते हैं कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है. अगर आप प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो नेचुरल होता है, आर्टिफिशियली गवर्नमेंट करती है, दे सेक्वेस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फोर्सफुली इंजेक्ट इन द ग्राउंड. वो भी मेथड्स होते हैं. इससे फायदा क्या होता है, क्लाइमेट चेंज. कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्लाइमेट चेंज कम होगा. ठीक है, तो वेयर इट हैज बीन अडॉप्टेड, मियावाकी मेथड हैज बीन अडॉप्टेड इन चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. और चेन्नई हैज बीन एट द फोरफ्रंट. चेन्नई काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, चेन्नई को जरूरत भी है. फ्लड आए थे, आपको पता है चेन्नई में. चेन्नई इज अ क्लासिकल केस ऑफ डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंट. चेन्नई में फ्लड में लोग मरे थे, किस वजह से, इसलिए चेन्नई यूज्ड टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्वॉयर्स. These were linked to the ocean itself, but because of development they have filled the reservoirs. जितने लेक वगैरह होती थी उनको फिल करके आपने बिल्डिंगें बना दी.
तो जब बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू गॉट चेन्नई फ्लड। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग कि दोबारा चेन्नई फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा ना हो। और रिमेंबर करिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डाइज नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स बट बिकॉज ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स। आप बिल्डिंग बना रहे हो, डैम बना रहे हो बिना एनवायरमेंट की परवाह करे, एंड दैट्स हाउ यू गॉट डिजास्टर्स। ठीक है, तो उसका फोकस रखना चाहिए, तो ये काम आ सकता है उसमें। उसके अलावा यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम कॉल्ड ग्रीन इंडिया मिशन एंड हरियाली महोत्सव। चलिए, सो दिस आई हैड फॉर यू। अगली न्यूज हमारे पास वोल्केनो के बारे में। Next we have is Mayo volcano, the gentle eruption of Philippines most active volcano Mayo volcano has posed nearly, not very important news but nonetheless हमें क्या इसमें important क्या है, volcanoes आपको पता होना चाहिए volcano क्या है, what is volcano, how they work, types of volcano that India has। इंडिया पे इकलौता volcano है अंडमान के पास में, बैरन आइलैंड, इकलौता volcano है हमारे पास, कभी एक्टिव volcano है, it erupts over time। इस पर आई थिंक बीपीएससी पूछ चुका है कई बार। ठीक है, मायो वोल्केनो कैसा है, इट इज अ एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो renowned for its near perfect cone shape। It is situated on the southern eastern portion of Luzo Island approximately ये important नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा Luzo Island, and it is situated on Luzo Island। It is a active stratovolcano in Philippines। क्लियर, इतना बहुत है। अब जल्दी से टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, पहला कैसा होता है स्ट्रेटोवोल्केनो, इसमें पिक्चर होनी तो चाहिए थी यार, ये देखिए, दिस इज हाउ यू सी अ स्ट्रेटोवोल्केनो। ठीक है, पर्टिकुलरली दिस इज द मैग्मा चैम्बर, दिस इज द कोन, दिस इज द वेंट, एंड दैट्स हाउ इरप्शन टेक प्लेस। ठीक है, सिंपली it is a large steep side volcano composed of alternate layers of solidifying lava। Magma, when it is inside the chamber it is called magma, when it come outside on the surface it is called lava। सेम ही चीज है, नाम अलग अलग है। composed of alternating layer of solidified lava, volcanic ash and other volcanic material। These volcanoes are typically cone shaped and can reach, तो ये फीचर्स याद रखने हैं। व्हाट इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो, अ स्ट्रेटोवोल्केनो व्हिच इज टिपिकली अ cone shaped volcano and it can achieve a greater height, it has alternating layers of solidified lava। all these facts you must remember। ठीक है, they are characterized by एक्सप्लोजिव, एकदम एक्सप्लोजन जो इरप्शन होता है, इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। एक्सप्लोजन का जो होता है रीजन अलग अलग हो सकते हैं। मान लेते हैं मैग्मा चैम्बर में देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ सम वाटर, मैग्मा चैम्बर उसमें देयर इज सम वाटर रिसोर्सेज व्हिच हैज कम फ्रॉम एनी टेक्टोनिक एक्टिविटी, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, सम नेचुरल रिसोर्स, सम नेचुरल वाटर कम इनटू द मैग्मा चैम्बर, इट इवेपोरेट्स क्विकली, सो इट क्रिएट्स अ प्रेशर सिस्टम। तो एकदम से क्या होता है, बूम। ठीक है, लाइक अ कुकर सिस्टम वाला सीन है। तो रिमेंबर इट हैज एक्सप्लोसिव इरप्शंस। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, माउंट फिजी इन जापान, माउंट वेस्टिवस इन इटली, माउंट रेनियर इन यूएस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रेटोवोल्केनो। और एक और हमने देखा अभी, मायो, माउंट मायो इन फिलीपींस। ठीक है, बाकी ये फिगर ये है, इसमें आप देख लेना। नेक्स्ट इज शील्ड वोल्केनो। अब शील्ड वोल्केनो क्या होता है, शील्ड वोल्केनो देखिए इस तरह से दिखता है, इट डज नॉट हैव अ ग्रेट हाइट। स्ट्रेटोवोल्केनो हैज अ ग्रेट हाइट एंड अपीयर्स लाइक अ कोन, it does not have a greater height। That's the most important point about it। Shield volcano is broad, it's a broad and gentle sloping volcano। जबकि स्ट्रेटो कैसा था, it was a height and steep sloping volcano। Shield volcano are broad and gentle sloping volcano formed by accumulation of basaltic lava flows। This lava flow spread out in thin layers creating a shield like shape। तो एक में you have a cone having a greater height, दूसरे में you have a wide dispersion of lava। It does not achieve much height but it is broad, highly broad, as you can see here। बात समझ में आई, दोनों में फर्क क्या है, एक में you have a cone shape structure, explosive eruptions and greater height with steep slopes, दूसरे में you have a wide distribution over a long surface। It has
low viscous lava that allows it to flow easily and cover distance. They are known as for their relatively quieter eruption. तो क्या क्या डिफरेंस हुआ? एक में आपका वॉलेंट इरप्शन है, एक में क्वाइटर इरप्शन है. एक में यू हैव अ ग्रेटर हाइट, एक में यू डू नॉट हैव अ ग्रेटर हाइट बट अ ग्रेटर एक्सपेंड. एक में यू हैव अ लो विस्कस लावा. ऑब्वियसली बात है, लो विस्कस होगा तभी तो फ्लो करेगा लॉन्ग डिस्टेंस तक. दूसरे में आपके पास कैसा है? हाई विस्कस लावा. फीचर्स क्लियर है सब में? प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंसेस इन बोथ द टाइप ऑफ वोल्केनोस. अगला देख लेते हैं. एग्जाम्पल है, याद कर लेना जो भी है. मोना, मोना लाओ, व्हाटएवर. मोना लाओ, मोना को मत लाओ, ठीक है. नेक्स्ट इज cinder cone volcano. Cinder cone volcano are small, steep-sided volcanoes characterized by loose, fragmented material called cinder and scoria. These volcanoes typically form as a result of explosive eruption of gas-rich magma. So, cinder cone volcano are often found in clusters along with flanks of large volcano. They have short eruption duration and tends to be relatively short-lived. कहने का सिंपल सा मतलब है, this is how cinder cones live. Basically, जो आपका शील्ड स्ट्रेटोवोल्केनो है, the stratovolcano can convert into a cinder volcano, or that stratovolcano can have cinder volcano around it. Stratovolcano बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, and it appears straightly. अगर वो उसका छोटा वर्जन क्या बनेगा? cinder. Simply stated, स्ट्रैटो का छोटा वर्जन क्या है? cinder. क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं. टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी पढ़िए. कैल्डेरास. कैल्डेरास क्या होता है? देखिए, इट्स अ डिप्रेशन बेस्ड वोल्केनो. हो सकता है आपका स्ट्रेटोवोल्केनो ही कैल्डेरा बन जाए. स्ट्रेटोवोल्केनो है, देयर विल बी अ वॉलेंट इरप्शन, और जो उसका ऊपर की एजेस है वो टूट जाएंगी, एंड इट विल क्रिएट अ डिप्रेशन शेप लाइक दिस. बात समझ में? हो सकता है स्ट्रेटो ही हो और सिंडर हो, कुछ भी हो सकता है, बट इफ देयर इज अ वॉलेंट इरप्शन तो द अपर एजेस ऑफ द वोल्केनो विल डिस्ट्रॉय एंड देयर विल बी अ डिप्रेशन क्रिएटेड, एज यू कैन सी हियर. तो स्ट्रेटोवोल्केनो कैन कन्वर्ट इनटू अ सिंडर वोल्केनो. सॉरी, क्या नाम है इसका? कैल्डेरा वोल्केनो. बट कैल्डेरा वोल्केनो फीचर क्या है? इट हैज द लार्ज बेसिन शेप वोल्केनिक डिप्रेशन. द टॉप पे कैसा होगा? एक वोल्केनिक शेप लार्ज डिप्रेशन होगा. अब वो हो सकता है स्ट्रेटो से बनाओ, किसी से बनाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर फीचर यही होगा इसका. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स वोल्केनो. ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स वोल्केनो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स वी डिस्कस्ड. जो भी टाइप्स हमने डिस्कस किए, इफ देयर इज अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वोल्केनो, इट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वोल्केनो. फिशर वोल्केनो. फिशर वोल्केनो क्या होता है? देयर आर सम फिशर्स ऑन द अर्थ सरफेस. टेक्टोनिक एक्टिविटी से व्हेन द प्लेट्स मूव देयर कुड बी फिशर्स. तो उसमें से क्या होता है? मैग्मा निकल सकता, लावा, मैग्मा इन फॉर्म ऑफ लावा कैन इरप्ट. मान लेते कोई ऐसे करके फिशर बना हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट फिशर देयर मे बी सम इरप्शन ऑफ लावा, पर यहाँ कोई वोल्केनो है नहीं. बात समझ रहे सबको? देयर इज नो वोल्केनिक एक्टिविटी हियर, बट जस्ट बिकॉज देयर इज अ फिशर. मान लेते कोई अर्थक्वेक आया, सीवियर अर्थक्वेक, उसके कारण अर्थ में क्रैक आ गया, एक फिशर बन गया, उसमें से लावा बाहर आ जाएगा. तो सच इज कॉल्ड फिशर वोल्केनो. दे कैन बी प्रोड्यूस एनीवेयर ऑन द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्टोनिक एक्टिविटी. जैसे इंडिया में तो मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया एक स्टेबल शील्ड है. आपका मेजरली रिंग ऑफ फायर में होता है. ठीक है, अब जल्दी देख लेते हैं मेजर वोल्केनिक रीजन. रिंग ऑफ फायर कहां पे है? पैसिफिक ओशियन. जो आपका पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन की जो पूरी रिम है, जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, दैट इज द हाईली एक्टिव रिम. हाईली एक्टिव रिंग, जो मेजॉरिटी ऑफ अर्थ वोल्केनो वहीं पाए जाते हैं. इट्स द हाईली मोस्ट एक्टिव रिंग, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो रिंग, दैट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से बोलते हैं. इट इज द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचिंग अलोंग द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. इसीलिए आपका जापान वगैरह जितने हैं, उनमें आए दिन क्या आते रहते हैं? अर्थक्वेक आते रहते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होते रहते हैं, बिकॉज दैट्स अ हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड. और वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसी है? सबडक्शन जोन. सबडक्शन होता है बेसिकली व्हेन यू डिफरेंट काइंड के होते हैं, जैसे इस तरीके से. हाउ इट हैपेंस? व्हेन यू हैव टू प्लेट्स, व्हेन यू हैव टू टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच आर ऑफ रफली इक्वल डेंसिटी. जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो प्लेट्स है व्हेन दे कम टुगेदर, आपको पता होगा इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है. प्लेट्स क्या होती है? थोड़ा सा मेंटल का पार्ट. अर्थ में आप कैटेगराइजेशन है क्रस्ट, कोर, मेंटल. क्रस्ट, मेंटल, कोर. तो थोड़ा सा मेंटल का पार्ट और क्रस्ट, उसके नीचे एक लिक्विड, और लिक्विड नहीं कहूंगा मैं, सेमी लिक्विड जोन है, दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. उसके ऊपर जितनी प्लेट्स है वो फ्लोट करती हैं. ऑल द प्लेट्स क्या करती हैं? उसके ऊपर फ्लोट करती हैं,
एंड इफ दे हैव रफली इक्वल डेंसिटी तो वो क्या करेंगी, दोनों सबडक्ट कर जाएंगे. इसीलिए आपके पास है मरियाना ट्रेंच. Mariana Trench Pacific Ocean में the deepest place because of subduction. सबको समझ में आया? अच्छा, इंडियन प्लेट है. इंडियन प्लेट हैज बीन कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट. और उसमें कौन सी प्लेट नीचे जा रही है? इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. एंड इफ दे हैव इक्वल डेंसिटी, एनी प्लेट दैट हैव इक्वल डेंसिटी, वो कैसे सबड्यू करेंगे? इस तरीके से. एंड इफ वन प्लेट इज डेंसर देन अदर, तो कैसे होगी? वो सबड्यू कर जाएगी, ऊपर वाली ऐसे चली जाएगी. समझ में आया? इंडियन प्लेट इज गोइंग अंडर. इंडियन प्लेट इज रिलेटिवली हैवियर. हालांकि प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है. जो यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है उनमें डेंसिटी का. तो ऐसा तो दोनों ही नीचे बैंड कर रही हैं, जैसे आपके हिमालयास बने हैं. लेकिन इंडियन प्लेट ज्यादा बैंड कर रही है. समझ में आया सबको? तो इंडियन प्लेट, अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, तो यू विल से इंडियन प्लेट इज गोइंग अंडर द यूरेशियन प्लेट. बात समझ में आई? हालांकि जा दोनों रही हैं, लेकिन इंडियन प्लेट ज्यादा जा रही है बिकॉज इंडियन प्लेट इज रिलेटिवली मोर डेंसियर देन द यूरेशियन प्लेट. ज्यादा फर्क नहीं है, पर थोड़ा फर्क है. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. इसलिए हिमालय आपके अपलिफ्ट हो रहे हैं हर साल. कितना अपलिफ्ट होते हैं? लगभग 1 सेंटीमीटर. अराउंड 1 सेंटीमीटर हिमालय हर साल अपलिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. मिड अटलांटिक रिज है आपके पास. जो अटलांटिक ओशियन है उसके मिड में से एक रिज जा रही है. आइसलैंड उसी का हिस्सा है. Mid Atlantic ridge, there is a proper zone and the plates are diverging there. ठीक है. And this is a कहाँ गया? Underwater mountain ridge that runs down the middle of the Atlantic Ocean. तो आपका Atlantic Ocean के middle में से एक ridge जा रही है. That is a highly volcanic activity ridge. It marks the boundary between two tectonic plates and associated with the volcanic activity. जैसे मैंने आपको बताया, आइसलैंड. आइसलैंड जो कंट्री है वो मिड अटलांटिक रिज का हिस्सा है. उसके अलावा आपका मेडिटेरेनियन एगेन होता है. इट्स अ रीजन ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी विद सेवरल वोल्केनो वगैरह वगैरह. ज्यादा एक्टिव नहीं है. सबसे ज्यादा एक्टिव दो ही है हमारे पास, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड मिड अटलांटिक रिज. बाकी एक्टिव है पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है. ठीक है. उसके अलावा वी हैव ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट सिस्टम. आपको पता ही होगा, अफ्रीका में जो साइड में है आपका नाइल रिवर जो है ना, उस साइड पे जो आपका सिस्टम, अफ्रीका का एक पार्ट उससे अलग हो रखा है जहां पे फ्रिक्शन गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड मिड अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम. इट्स अ सीरीज ऑफ रिफ्ट वैलीज एक्सटेंडेड इन द फ्रॉम द रेड सी ऑन द टॉप टू द बॉटम ऑफ अफ्रीका. आई थिंक वहां तक भी जाता है. द रीजन इज एसोसिएटेड विद volcanic activity with notable volcanoes include Mount Kilimanjaro and Mount whatever Nyiragongo something. ठीक है, जो भी है, remember those names. So these are the rift system. Please remember ring of fire, mid Atlantic Ocean ridge, which are the most active range. ये जो है इतनी एक्टिव नहीं है. The one is the Mediterranean and the East African. उसके अलावा आपके पास कमचटका पेनिनसुला एंड कुरीज आइलैंड एंड हवाई. ठीक है, ये भी आपके पास रहेंगे. तो दीज आर आपके वोल्केनिक रीजन. अब आते हैं हम इंडिया में कौन कौन से वोल्केनोज हैं. इंडिया इज प्राइमरली, आपको मैंने बताया, इंडिया इज प्राइमरली इंडियन प्लेट एंड इट इज अ रिलेटिवली स्टेबल प्लेट. इंडिया में इतने वोल्केनोज नहीं है. इट इज अ वेरी स्टेबल प्लेट. एंड आपको इंडिया पर्टिकुलरली देखिए, यहाँ पे आपके हिमालयाज है. हिमालयाज बैंड हो रहे हैं दो जगहों पे. अगर आपको पता हो, जो आपका अंडमान निकोबार है वो हिमालयन रेंज का हिस्सा है. जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, दे आर द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज सिस्टम. बिकॉज हिमालयन सिर्फ यहां नहीं है, दे आर बैंडिंग एट 2 पॉइंट. दीज आर कॉल्ड सिंटैक्सियल बैंड. याद रखिएगा सब लोग. सिंटैक्सियल बैंड, देन इट गो फ्रॉम म्यांमार. म्यांमार में आपके पास अराकन माउंटेन्स जो है, they are basically the part of Himalayas. उसके बाद it goes into the sea and you have Andaman Nicobar. Andaman Nicobar is also a part of Himalayan range. Clear? And these plates are colliding with each other. तो Himalaya has become, एक तो ये हो गया. उसके अलावा बीच में और इंडिया के बीच में you have a Rift Valley system, particularly Vindhyans and Satpura range. तो मिड इंडिया में विंध्यान एंड सतपुरा रेंज है. दे आर आल्सो बिकॉज द प्लेट टकराए, द टेक्टोनिक कंप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट हैज बेंडेड इंडियाज प्लेट फ्रॉम बिटवीन एंड दैट्स हाउ यू गॉट विंध्यान एंड सतपुरा. उसके अलावा आपको पता ही होगा दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स.
ठीक है, दीज आर द माउंटेन वी हैव वर्चुअली। ठीक है, राजस्थान में वो तो मोर लेस खत्म हो चुकी है कहानी, उसकी एक्सपायरेशन डेट निकल चुकी है उसकी। अरावलीज है पर थोड़ा बहुत बचा है अभी। हिमालय एक समय के बाद अरावलीज की तरह दिखेगा, मतलब हमारी लाइफ में नहीं, बहुत बाद, हजारों लाखों साल बाद द हिमालयस विल लुक लाइक अरावलीज। इट्स अ वियर्ड बेसिकली। चलिए देख लेते हैं हम इंडिया पे एक्टिव आइलैंड कौन कौन से हैं, सॉरी एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया हैज। इट इज लोकेटेड इन अंडमान सी। इट इज द ओनली, याद रखिएगा सब लोग, इट इज द only active island. And what kind of volcano it is? Stratovolcano. It is the only active volcano India has, and it is a stratovolcano that experienced intermediate eruption over the year. The most recent was 2017. हालांकि रेस्ट्रिक्टेड वहां जा नहीं सकते। उसके बाद है नरकोंडम आइलैंड। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अंडमान सी। नरकोंडम आइलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड विद एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो इंडिया पे एक लौता एक्टिव वोल्केनो है, वो है सॉरी क्या नाम है उसका, बैरन आइलैंड। उसके अलावा आपके पास कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। इनएक्टिव वोल्केनो हमारे पास है, एक है हमारा नरकोंडम आइलैंड पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो एट सेंटर। उसके अलावा आपके पास वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में वोल्केनो नहीं है, लेकिन व्हेन इंडियन प्लेट वाज ड्रिफ्टिंग, जब इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट कर रही थी तो फॉर्म ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग इट एक्सपीरियंस वेरियस वोल्केनिक इरप्शंस। एज सच वहां कोई वोल्केनो नहीं है इस वक्त ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में, बट व्हेन इंडियन प्लेट वाज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट तो इट एक्सपीरियंस अ लार्ज नंबर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। उसके रेमिनिसेंट है केवल, ठीक है, वोल्केनोज नहीं है वहां पे। डेक्कन ट्रैप आपको पता ही है। डेक्कन ट्रैप क्या है? वोल्केनिक इरप्शन से ट्रैप बना है। डेक्कन ट्रैप इट्स अ प्लेन जोन क्रिएटेड बाय वोल्केनिक इरप्शंस ओवर टाइम। वही रीजन है इसका भी। व्हेन इंडियन प्लेट वाज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट, during that period it encountered some lava eruptions, kind of fissure eruption। फिशर पढ़ाया था मैंने, जब एक फिशर बन जाता है उसमें से eruption निकलता है जो रिलेटिवली स्प्रेड करता है लाइक अ टेबल, लाइक अ प्लेन टेबल। एंड दैट्स व्हाई डेक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब ही टेबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप। तो एक्टिव वोल्केनो एकलौता हमारे पास बैरन आइलैंड, इनएक्टिव वोल्केनो नरकैंडम। उसके अलावा हमारे पास वी हैव रेमिनेंट्स ऑफ volcanic eruption in past, most notable is Deccan trap। चलिए बस यही था आई बिलीव। जेनरिक ड्रग, हमारा टाइम हो गया वैसे। जिंदा हो सब लोग, कर लें इसे, क्या थैंक यू सर। अरे चलो जल्दी से सुन लो, 5 मिनट और रुक जाओ, सुन लो इसे जल्दी से। जेनरिक ड्रग्स, देखिए जेनरिक ड्रग्स क्या होता है? यू हैव अ ब्रांडेड ड्रग्स। मैं जल्दी से इसके सेक्शन बता देता हूँ, इसमें जल्दी से कर लीजिए। 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इंडिया हैज अ Patent Act of 1970। Within that act, you have 2 sections, Section 3, subsection D and Section 84। दोनों याद करने हैं आपको। Section 3D क्या बोलता है? It says you cannot repatent a medicine। You cannot repatent a medicine if there is no enhanced efficacy। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं efficacy clause। अब ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज यू हैव मेडिसिन विच आर कॉस्टली टू मेक। उसके बाद यू गेट अ पेटेंट, ओनली यू कैन मेक दैट मेडिसिन, ओनली यू कैन सेल दैट मेडिसिन। एंड इट वाज डन सो दैट यू विल मेक न्यू मेडिसिन, वरना बनाओगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, मेडिसिन बनाने में लगता है बहुत पैसा। एंड इफ यू आर स्पेंडिंग दैट मनी टू क्रिएट अ न्यू मेडिसिन, यू मस्ट बी अलाउड टू एक्सप्लॉइट दैट मेडिसिन एक्सक्लूसिवली। और ऐसा नहीं होगा तो आप क्यों बनाओगे मेडिसिन? तो उसके लिए हम क्या देते हैं? पेटेंट। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, इंडिया में लगभग 20 साल का होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने मेडिसिन बनाया, 20 ईयर्स आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, उसके बाद वो पेटेंट से बाहर चला गया। पेटेंट से बाहर जाने के बाद एनीवन कैन मेक दैट मेडिसिन, एनी मैन्युफैक्चरर कैन मेक दैट मेडिसिन एंड सेल इट फॉर एनी प्राइस। दे आर कॉल्ड जेनेरिक मेडिसिन। क्लियर है? Generic medicine is just like a branded medicine. The only difference is it is out of patent। आप कभी मेडिकल पे गए तो क्या बोलता है कि ये कहता ना मैम ये मेडिसिन नहीं है पर इसके सेम सॉल्ट वाली मेडिसिन है। वो सेम सॉल्ट क्या होता है? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस मेडिसिन का एक छोटा सा हिस्सा जो आपकी बॉडी पे काम करता है, बाकी डिलीवरी मैकेनिज्म है। इसीलिए कुछ लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, कुछ इंजेक्शन की फॉर्म में होते हैं। दैट ऑल इज डिलीवरी मैकेनिज्म।
चाहे टैबलेट हो चाहे सीरप हो कुछ भी हो, दे आर डिलीवरी मैकेनिज्म। जिसका एक्टिव कंपोनेंट होता है वो एक बहुत छोटा पार्ट होता है, हम क्या बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेम सॉल्ट। तो जेनरिक मेडिसिन क्या है, इट्स अ मेडिसिन ऑफ इक्वल इफिकेसी, इक्वल कैपेसिटी, द ओनली डिफरेंस इज इट इज आउट ऑफ पेटेंट। और उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 20 साल और एक्सप्लॉइट करना है इस मेडिसिन को, तो आप क्या करते हैं उस मेडिसिन में छोटी मोटी चेंजेस कर देते हैं। मान लेते हैं यू हैव अ मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, यू हैव टू टेक 15 मेडिसिन फॉर 15 डेज, वन मेडिसिन पर डे। आप क्या करेंगे, यू विल चेंज दैट मेडिसिन अ बिट। अब क्या होगा, आपको यू हैव टू टेक वन मेडिसिन फॉर 7 डेज एंड यू विल अगेन अप्लाई फॉर पेटेंट। अगर आपको दोबारा पेटेंट मिल जाता है तो दोबारा वो मेडिसिन नहीं बन पाएगी। तो इससे फायदा क्या करते हैं, इसे बोलते हैं हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। क्या बोलते हैं इसे हम, दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो इससे आप उस मेडिसिन को जिंदगी भर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर नुकसान किसका होगा, जनता का। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू बाय 1000 रुपी ऑफ मेडिसिन। अगर वो जेनरिक हो जाएगी तो 10 रुपए में मिलेगी, ब्रांडेड होगी तो 1000 रुपए में मिलती है। बात समझ में आया। उसके लिए हम कौन सा क्लॉज लाए हैं, क्लियर। ये बहुत केस होते रहते हैं, स्विस कंपनी का नोवार्टिस था, उसने पेटेंट रीपेटेंट करवाने की कोशिश करी, हमें नहीं मिला। ये अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए बुरा है। इंडिया यूएस में सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये दोनों पॉइंट है। चलिए, कंपल्सरी लाइसेंस। अब मान लेते हैं यू हैव अ मेडिसिन विच इज वेरी क्रिटिकल, यू हैव अ मेडिसिन विच इज वेरी क्रिटिकल, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया हुआ नीचे शायद, हाँ देखिए एक कंपनी थी बेयर्स, बेयर्स का एक ड्रग था नेक्सवर, इट वाज अ एंटी कैंसर ड्रग। इसकी कीमत इसमें लिखी है क्या, हाँ, इट वाज कॉस्टिंग अराउंड, सोचिए कितने लोग 2.8 लाख रुपीस पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में मीडियन इनकम आई थिंक 40,000 के आसपास है। इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं लोग, 40,000। और उनसे आप बोल रहे हो कि 2.8 लाख का आपको मेडिसिन मिलेगा कैंसर में, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब ये कॉर्पोरेट ग्रीड की हद है। पर अमेरिका में आप कुछ भी प्राइस रख सकते हैं। रिमेंबर, अमेरिका इज अ प्योरली न्यू लिबरल कंट्री, इट्स अ प्योरली न्यू लिबरल कंट्री। वहां पे आप 1 रुपए की चीज 10 करोड़ की भी बेच सकते हैं अगर आपकी औकात हो तो। इंडिया में ऐसा नहीं होता। सो वी ब्रॉट कंपल्सरी लाइसेंस, वी सेड एनी मेडिसिन that will not work in India, that will be costly and will not satisfy the demand of the public, we will violate your license and give license to manufacture to someone else. मान लेते हैं मेरे पे एक मेडिसिन है एंड जैसे मैं बेयर्स कॉर्पोरेशन हूं, मेरी मेडिसिन का प्राइस क्या है 2.8 लाख रुपीस, मुझ पे पेटेंट है और अभी पेटेंट में मान लेते हैं 15 साल बचे हैं, तो ओनली 5 years आई हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग दिस। अब गवर्नमेंट को लगता है दिस मेडिसिन इज वेरी नेसेसरी फॉर द पीपल, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट किसी भी इंडियन कंपनी को, इस केस में कौन बनी, नेटको, गवर्नमेंट किसी भी इंडियन कंपनी को बोलेगी कि आप इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर दो, पेटेंट गया बाहर में। इसे हम बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंस। सबको समझ आया, इट इज कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस इज गिवन टू अ पेटेंटेड मेडिसिन इफ इट डज नॉट मीट द डिमांड ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया। बात क्लियर हुई। आप खुद देखिए 2.8 लाख की थी, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लाइसेंस किसको दिया, नेटको को, उससे बोला ये मेडिसिन बनाओ और जनता में दो। कितने की पड़ी फिर ये, कितना फर्क है। और हो सकता है ये 50 रुपए की पड़ जाए, गवर्नमेंट क्या करेगी 8,000 रुपए सब्सिडी दे देगी। इतना गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, अभी इतनी सब्सिडी नहीं दे पाती, 2.8 लाख की सब्सिडी नहीं दे पाती, लेकिन ये सब्सिडी दे सकती है। गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज दिस मेडिसिन फॉर 8,000 रुपीज। कितने की होगी मेडिसिन, सिर्फ 800 रुपए की। तो जो मेडिसिन आपको महीने की 2.8 लाख की पड़ रही थी, कितनी की पड़ रही है, सिर्फ 800 रुपए। नेटको इंडियन कंपनी है, ये जेनरिक मैन्युफैक्चर, उसका काम ही है जेनरिक मेडिसिन बनाना। तो नेटको नहीं मानता, हम किसी और को दे देते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, आई एम गिविंग द पेटेंट, तो मैं किसी को भी दे सकता हूं। नेटको को चुन लिया गया, मर्जी है उनकी। नेटको तो खुश हो गया ना, नेटको को तो प्रॉफिट मिलेगा, वो एक मेडिसिन बना रहा है जो ब्रांडेड थी अब जेनरिक हो गई और केवल वो बना रहा है, नेटको को तो मजा आ गया। लेकिन सस्ती कितनी पड़ी, इसी को हम बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंस। आपको क्लियर है, इट्स अ वॉल्यूशन ऑफ पेटेंट बट इट इज वेरी नेसेसरी। इंडिया यूएस रिलेशन जब आप करेंगे आईआर में, सबसे बड़ा डिस्प्यूट इंडिया यूएस रिलेशन में इन दोनों पॉइंट पे है। यूएस चाहता है इंडिया इन दोनों पॉइंट्स को, इंडिया इन दोनों प्रोविजन को अपने लॉ से हटाए। ओके, यूएस क्या है, इट्स अ प्योरली न्यू लिबरल कंट्री। बात क्लियर है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर रिमेनिंग क्लासेस। टुमारो नहीं, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो है।
हाँ भाई कल छुट्टी है, जाओ मजे करो। बाय एवरीवन।